رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعلنی وزیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ اللہ قبول فرما۔ 12واں پارہ اور سورہ یوسف شروع ہوگی، تھوڑا سا سورہ ہود کا ہے، اس کے بعد سورہ یوسف۔ یعنی دنیا کی آخذینہ سے غرض یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے ہر کے صفات جمالیہ و قہریہ کا ظہور ہو، اس لیے مظاہرہ کا مختلف ہونا ضروری ہے تاکہ ایک جماعت اپنے مالک کے وفاداری و اطاعت دکھا کر رحمت و کرم اور رضوان و غفران کا مظہر بنے، جو الا من رحم ربک کے مصداق ہے۔ دوسری جماعت اپنی بغاوت و غداری سے اس کی صفت عدل و انتقام کا مظہر بن کر ہوس و دمام کی سبجا بھگتے، جس پر خدا کی یہ بات پوری ہو، لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین۔ بہرحال آخذینہ عالم کا تشریح مقصد عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور تکوینی غرض یہ ہے کہ تشریعی مقصد کو اپنے کسب اختیار سے پورا کرنے اور نہ کرنے والے دو گروہ ایسے موجود ہیں جو حق تعالیٰ کی صفات جلالیہ جمالیہ یا الفاظ دیگر لطف کر کے مورد مظہر بن سکے، پھر لطف کرم کر کے مظاہر بھی اپنے مدارس سے استعداد عمل کے اعتبار سے مختلف ہوں گے۔ گل ہے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس جہاں تکوینی اختلاف سے اوپر بہت سے انبیاء اور رسول کے قصص مذکور ہوئے تھے، اب ختم صورت پر ذکر قصص کے بعض حکمتوں پر تنبیہ فرماتے ہیں، یعنی گزشتہ اقوام اور رسول کے واقعات سن کر پیغمبر علیہ السلام کا قلب بیش از بیش ساکن و مطمئن ہوتا ہے اور امت کو حقیقی باتیں معلوم ہوتی ہیں جن میں نصیحت و تذکیر کا بڑا سامان ہے۔ آدمی جب سنتا ہے کہ میرے انبیاء پہلے فلاں فلاں جرائم کے پاداش میں ہلاک ہو چکے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ فلاں راستہ اختیار کرنے سے پچھلوں کو نجات ملی تو طبیعت اس کی طرف دوڑتا ہے۔ پھر حقیقت قرآن کریم میں قصص کا حصہ اس قدر مؤثر اور معزز واقع ہوا ہے کہ کوئی شخص جس میں تھوڑا سا بھی آدمیت کا جزو ہو اور خوف خدا کی ذرا سی بھی چیز دل میں رکھتا ہے، انہیں سن کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ باقی قصص یا بعض دوسرے مضامین کی تکرار جو قرآن کریم میں پائی جاتی ہے، اس پر ہم نے رسالہ القاسم کی ابتدائی دور میں ایک مستقل مضمون لکھا ہے، اسے ملاحظہ کر لیا جائے۔ اس مضمون کی آیت پہلے اسی صورت میں گزر چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میری بات نہیں مانتے تو بہتر ہے تم اپنے ضد پر جمے رہو، میں اپنے مقام پر مستقیم ہوں، نیز تم میرے لیے حوادث سے متحر کا انتظار کرتے رہو، میں تمہارے انجام وقت کا منتظر۔ چند روز میں یہ پتہ چل جائے کہ ظالم کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تربصوا بیکم الدوائر علیہم دائرۃ السوء، یعنی آپ ان کے کفر و شرارت سے دلگیر نہ ہو، اپنا کام کیے جائے اور ان کا فیصلہ خدا کے حوالہ کرے، اس سے آسمان زمین کی کوئی بات چھپی نہیں، سب معاملات پھر اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، وہاں ان کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کس خبر میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ تو دل جان سے اپنے پروردگار کی بندگی اور فرمانبرداری میں لگے رہیے، اتنا اسی کا نات پر بھروسہ رکھے، اب وہ تمہارے مخلصانہ اعمال سے بے خبر نہیں، ان کے مناسب تم سے معاملہ کرے گا۔ حدیث میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بڑھاپے کے آثار بہت جلد آ گئے، فرمایا شیبتی ہود و اخواتها سورہ ہود اور اس کے بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ بعض علماء نے لکھا سورہ ہود کی جس آیت نے آپ کو بوڑھا کر دیا تھا، فاستقم کما امرت ومن تاب ومعك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير، رزقنا الله سبحانه وتعالى استقامت على دین سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ ہود بفضل سورہ ہود ختم ہوئی۔ اب یہاں سے جو ہے سورہ یوسف شروع ہوتی ہے، جس کا امین عند اللہ ہونا بالکل واضح ہے، جن احکام شرائع یا معاذ و نصاب پر وہ مستمنیت روشن اصحاب ہے، یعنی عربی زبان جو تمام زبانوں میں زیادہ فصیح وسیع اور منضبط و پرشوکت زبان ہے، نزول قرآن کے لیے منتخب کی گئی ہے۔ جب خود پیغمبر عربی ہیں تو ظاہر ہے کہ دنیا میں اسی کے اولین مخاطب عرب ہوں گے، پھر عرب کے ذریعے سے چاروں طرف یہ روشنی پھیلے گی۔ اسی کی طرف لعلکم تعقلون میں ارشاد فرمایا تمہاری زبان میں اتارنے کی وجہ یہ ہے کہ تم جو پیغمبر علیہ السلام کی قوم ہو، اول اسی کے علوم معارف کا مطلب چکو، پھر دوسری کو چکھاؤ۔ چنانچہ ایسا ہوا ابن کثیر لکھتے ہیں کہ انزل اشرف الکتب باشرف اللغات علی اشرف الرسل سفارت الاشرف الملائکۃ وکان ذلک فی اشرف بقاء ارض و ابتداء انزالہ فی اشرف شہود سنت وهو رمضان وقوم علی من کل وجوہ، یعنی اس وحی کے ذریعے سے جو قرآن کی صورت میں ہم پر نازل ہوتی ہے، ہم ایک نہایت اچھا بیان نہایت حسین طرز میں تم کو سناتے ہیں، یعنی کہ اس قصے کو مطلب بہت ہی خوبصورت قصہ کہا گیا یوسف علیہ السلام کے حسین طرز میں تم کو سناتے ہیں، جس سے اب تک اپنی قوم کی طرح تم بھی بے خبر تھے۔ وہ یہ واقعہ کچھ تاریخ اور بائبل میں پہلے سے مذکور تھا، مگر وہاں ایک افسانہ کی صورت میں تھا۔ قرآن کریم نے اس کو ضروری اور مفید اجزا کو ایسی عجیب ترتیب اور بلیغ مؤثر انداز میں بیان فرمایا جس نے نہ صرف پہلے تذکرہ کو نویسیوں کو تاہیوں پر مطلب کیا، بلکہ موقع بہ موقع نہایت اعلیٰ نتائج کی طرف رہنمائی کی۔ قصہ کے زمن میں علوم ہدایت کے ابواب مفتوح کر دیے۔ یہ بات خداوند قدوس کی تقدیر کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، خدا جب کسی پر فضل کرنا چاہے تو سارا جہان مل کر بھی اپنی ساری امکانی تدابیر سے اسے محروم نہیں کر سکتا۔ صبر استقامت دنیا اخروی کامیابی کی تقدیر ہے، حسد عداوت کا انجام خذلان نقصان کے سوا کچھ نہیں۔ عقل انسانی بڑا شریف جوہر ہے، جس کی بدولت آدمی بہت سے مشکلات پر غالب آتا ہے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیتا ہے۔ اخلاقی شرافت اور پاکدامنی انسان کو دشمنوں حاسدوں کی نظر میں بھی آخرکار معجز بنا دیتی ہے۔ اسی قسم کی بے شمار حقائق ہے جن پر احسن القصص کے زمن میں متنبع فرمایا۔ مفسرین نے اس صورت کی شان نزول میں کئی روایتیں نقل کی ہیں، سب کے ملانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے مشرکین مکہ کے ذریعے سے امتحان یہ سوال کیا کہ حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد تو شامل آتی تھی، پھر بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچ گئے، جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے مقابلہ کرنے کی نوبت ہے۔ شاید مسلمانوں کو بھی ایک مفصل تاریخی واقعہ جو بصائر عبر سے معلوم ہو سننے کا اشتیاق ہوا ہوگا۔ ادھر اس قصہ کے زمن میں جن احوال حوادث کا تذکرہ ہونے والا تھا وہ کئی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم کے حالات سے مشابہت رکھتے تھے۔ ان کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں موجب تسکین خاطر اور آپ کی قوم کے حق میں موجب عبرت تھا۔ ان وجہ سے یہ پورا واقعہ کافی بسط و تفصیل سے قرآن کریم میں بیان فرمایا تھا۔ پوچھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ
और उनकी औलाद के शाम से मिस्र आने का सबब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या हुआ। फिर वही उनकी नस्ल पहलियाँ बढ़ती रही ताकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिर आकर फ़िरौन और कप्तियों की गुलामी से उन्हें निजात दिलाई। यानी 11 सितारे आज चाँद सूरज मेरे आगे झुक रहे हैं और पस्त हो रहे हैं। ये ख्वाब लड़कपन में देखा था, सच है होनहार बढ़ के चिकने चिकने पात। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा था ख्वाब में कि 11 सितारे आज चाँद सूरज मेरे आगे झुक रहे हैं। इसी की मिसाल दी गई है कि होनहार बढ़ के चिकने चिकने पात। यानी शैतान हर वक्त इंसान की घाटी में लगा रहा, बस वैसा अंदाजी करके भाइयों को तेरे खिलाफ उकसा देगा, क्योंकि यानी कि ख्वाब का जवाब देने लगे याकूब अलैहिस्सलाम। जब वो अपने अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब बताया था, कहने लगे याकूब अलैहिस्सलाम का जवाब देने लगे। यानी शैतान हर वक्त इंसान की घाटी में लगा है, बस वैसा अंदाजी करके भाइयों को तेरे खिलाफ उकसा देगा, क्योंकि ख्वाब की ताबीर बहुत ज़ाहिर थी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को जो बहरहाल खानदान में नबुव्वत में से थे, ऐसे वादा ख्वाब का समझ लेना कुछ मुश्किल न था कि 11 सितारे 11 भाई हैं, चाँद सूरज माँ बाप हैं, गोया सब किसी वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम की अज़मत शान के सामने सर झुका देंगे। चुनांचे आखिर सूरत में यावत हाज़ा तावील रोया कब्ल का जाला रब्बी हक़्क़ा का इस तरह इशारा किया। मालूम होता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का आपसे पेशतरी महसूस करते थे कि यूसुफ के साथ बात की खुसूसी मोहब्बत को देखकर इसके इलाती भाई दिल में फुरते हैं। अब उन्होंने ख्याल आया कि अगर कहीं ये ख्वाब सुन पाए तो शैतान हसद की आग उनके दिलों में भड़का देगा। आज जो से हसद में आंखें बंद करके मुमकिन है कोई ऐसी हरकत कर गुजरे जो यूसुफ की अजीज और खुद उनकी रुसवाई अंजाम का मौजूद हो। इसलिए आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मनो फरमा दिया कि अपना ख्वाब भाइयों के रूबरू जाहिर न करें। यूसुफ का एक हकीकी भाई बिन्यामीन था, उसके सामने जिक्र करने की भी इजाजत नहीं दी। वो इससे बुराई का कुछ अंदेशा न था, लेकिन ये मुमकिन था कि सुनकर भी दादी से दूसरों के सामने तस्करा कर दी। इस तरह ये खबर लोगों में शाया हो जाता। हाफिज़ इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने एक मुस्तकिल रिसाला में लिखा है कि कुरान लुगत अरब के लिए तवारात में से कोई चीज़ इस ख्याल की तायद नहीं करती कि बिरादरान यूसुफ अंबिया थे। न रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी खबर दी, न सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में कोई इसका कायल था। भला हकूक वालदान की तरह मुसलमान भाई के कत्ल पर इक़दाम करना, उसको गुलाम बनाकर भेज डालना, भला कुफ्र की तरफ भेज देना, फिर सरी झूठ और हीले बनाना वगैरह ऐसी हरकत सीनियर क्या किसी नबी की तरफ का किबल अज़बात ही सही मंसूब की जा सकती है। जिन लोगों ने बिरादरान यूसुफ की नबुव्वत का ख्याल ज़ाहिर किया, उनके पास लफ्ज़ असबात के सिवा कोई दलील नहीं। हालांकि असबात खास तसल्बी औलाद को नहीं बल्कि अक़वाम अमम को कहते हैं। अब बनी इसराइल के असबात पर तकसीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अहद में हुई है। यानी जिस तरह ऐसा अच्छा ख्वाब दिखला, इसी तरह जिस पर रहमत से अपनी बारगाह खुद में तुझको खुसूसी मकाम अता फरमाए। चुनांचे नबुव्वत अता फरमाई तरह तरह की ज़ाहिरी व बातिनी नवाज़ी से की। मसलन ताबीर रोया, यानी ख्वाब सुनकर उसके आजजा को ज़हानत फरासत से ठिकाने पर लगा देना, हर बात के मौका महज को समझना, मामला के आखिर व नताइज को फ़ौरन परख लेना, और खुदा और पैगम्बर के इरशादात व तमाम उम्म के कसस और कुतुब मंज़ला की मज़ामीन की तह तक पहुँच जाना, ये सब चीज़ें तावील अहादीस के तहत में मुंदरज हो सकती हैं। यानी उखरवी नेमतों के साथ दुनिया नेमतें अता फरमाएगा, नबुव्वत के साथ बादशाहत में हिस्सा देगा, शदाइद महन से नजात देकर खुशहाली और फराग वाली की जिंदगी नसीब करेगी। याकूब अलैहिस्सलाम के घराने को दुनिया मकरूहात मादी तकलीफों से राहत देगा और आइंदा उनकी नस्ल से बड़े बड़े पैगंबर और बादशाह पैदा करेगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तो अपना नाम नहीं लिया, अपने वाले हज़रत इसहाक, उनके वाले हज़रत इब्राहिम का जिक्र फरमाया। हज़रत इब्राहिम को खुदा ने अपने खलील और नबी बनाया, उनके दुश्मन नमरूद को हलाक किया, के शोलों को उनके लिए गुलजार बना दिया। हज़रत इसहाक को नबुव्वत अता की, फिर उनके सलब से हज़रत याकूब जैसा नबी पैदा किया, जिससे तमाम अंबिया बनी इसराइल का सिलसिला चला। हदीस सहीह में है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जो पेशनगोई की, इसका कुछ हिस्सा तो गालिबन हज़रत यूसुफ के ख्वाब से समझा, इससे कि इतनी छोटी उम्र में ऐसा मौजू मुबारक ख्वाब देखा, कुछ हज़रत यूसुफ के खसाइल और शमाइल से या वही इलाही के जरिए से मतलब हुए होंगे। यानी वो हर एक की मुनासबत और इस्तेदाद से बाखबर है, अपनी हिकमत से उसी के मुनासिब फ़ायद पहुँचाता है। यानी जो लोग इस तरह के वाक़यात दरियाफ्त करके किसी नतीजा पर पहुँचना चाहते हैं, उनके लिए यूसुफ और उनके भाइयों का सरगुजा में हिदायत व इबरत की बहुत सी निशानियाँ मौजूद है। इस किस्सा को सुनकर कलूब में हक़ तआला की अज़ीम कुदरत व हिकमत की नक्श जम जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का बयान सबूत मिलता है। आप बावजूद उम्मी होने और किसी किताब या मौलिम से इस्तेफादा न करने के ऐसे मुनफ़तह व मनज़बित तारीख़ हक़ाइक़ का इंकशाफ फरमा रहे, जिनके बयान की बख़बर आलाम रब्बानी की कोई तवज्जो नहीं हो सकती। खुसूसन कुरैश मक्का के लिए जो यहूद के उकसाने से इस किस्सा के मुतालिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहे थे, इस वाक़या में बड़ा इबरत आमूज़ सबक है कि जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने घर से निकाला, अज़रा हसद कत्ल या जला वतन करने की मशवरे किया, तरह तरह से इज़ाई पहुँचाए, अहानत इस्तिग़फ़ाफ़ में कोई तहक़ीक़ उठा न रखा। आखिर एक दिन आया कि यूसुफ की तरफ से नादम व मोहताज होकर आई। यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुदा ने दीन दुनिया के आला मनासिब पर फ़ायद किया। उन्होंने अपने उरूज व इक़्तिदार के वक्त भी भाइयों के जराइम से चश्मपोशी किया, निहायत दरिया दिली से सबके कसूर माफ़ कर दिए। ठीक इसी तरह हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिरादरी ने आपके मुतालिक के नापाक मंसूबे वादे और दुख पहुँचाई, इज्जत व आबरू पर हमले के हत्या के वतन छोड़ने पर मजबूर किया। लेकिन जल्द वो दिन आने वाला था जब वतन से अलग होकर आपकी कामयाबी अरफत शान का आफ्ताब चमका और चंद साल के बाद फतह मक्का का वो तारीखी दिन आ पहुंचा, जब कि आपने अपनी कौमी और वतनी भाइयों की गुज़श्ता तक़सीदात पर बाइना हज़रत यूसुफ वाले कलमात ला तस्रीबा अलैकुम यौम फरमाकर कलम अफू खींच दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ उनके आनी भाई बिन्यामीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, क्योंकि ये दोनों अपने इलाती भाइयों से छोटे थे। वालदा का इंतकाल हो चुका था और ख़ास हज़रत यूसुफ की निस्बत अपने नूर फरासत या इल्हाम रब्बानी से समझ चुके थे कि इनका मुस्तक़बिल निहायत दरख्शां और नबुव्वत का ख़ानदानी सिलसिला इनकी ज़ात से वाबिस्ता होने वाला। खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, सूरत, सीरत और कमाल ज़ाहिरी बातिनी पितर बुजुर्गवार की मोहब्बत खुसूसी को अपनी तरफ जज़्ब करता था। दूसरे भाइयों की चीज़ नागवार थी, वो कहते थे कि वक्त पर काम आने वाले तो हमें, हमारा एक ताकतवर जत्था है जो बाप की ज़ईफ़ी में काम आ सकता है। इन छोटे लड़कों से क्या उम्मीद हो सकती है। इन ख़यालात के मातहत अपने वालिद बुजुर्गवार की निस्बत करते थे कि वो इस मामला में सख्त गलती और सरी खता पर है, अपने नफ़ा नुकसान का सही मामला नहीं करते। यानी रस हसद की आग अंदर ही अंदर सुलगती रहे। आखिर आपस में मशवरा किया कि यूसुफ की मौजूदगी में मुमकिन है कि वालिद बुजुर्गवार की खुसूसी मोहब्बत व तवज्जो को हम अपनी तरफ खींच सकें। इसलिए यूसुफ का किस्सा ही यहाँ से खत्म कर देना चाहिए। कहा कत कर दो या किसी दूर दराज मुल्क की तरफ
फेंक दो, यानी कि उनके 11 भाइयों ने मशवरा किया, जहाँ से वापस ना आ सके। जब वो ना रहेंगे तो बाकी सारी तवाजात मेहरबानियों कि हम ही तनहा हकदार हो जाए। बिन्यामीन के मामलात को गालिबन के यहाँ कोई अहमियत नहीं थी। गोया की मोहब्बत को यूसुफ की मोहब्बत का ज़मीमा समझते थे, यानी एक मरतबा कत्ल वगैरह का गुनाह करना पड़ेगा, उससे फारिग होकर तौबा कर लेंगे, खूब नेक बन जाएंगे। गोया दिन के दिन से हाथ से जन्नत नबी। बाद मुफस्सिरीन ने वतकुन बादी कौमा सालीन के माने गया कि यूसुफ के बाद हमारे सब काम ठीक का दुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि पिदर बुजुर्गवार का दस्त सफ़रत यूसुफ से मायूस होकर सिर्फ हमारी ही सर ऊपर रहेगा। ये कहने वाला यहूदा था, यानी कत्ल करना बहुत सख्त बात है, हमारा मकसद बदून, यानी कि यहूदा उनके भाई का नाम था। कहने वाला यहूदा यानी कत्ल करना बहुत सख्त बात है, हमारा मकसद बदून इसके भी हासिल हो सकता है। अगर तुम यूसुफ को यहाँ से इलादा करना चाहते तो आसान सूरत यह कि उसे किसी बस्ती दूर किसी गुमनाम कुएं में डाल दो। अबू हया ने बाद अहले लोगों से नकल किया कि गयाबत ताकचा वगैरह को कहते हैं, जो कुएं बावली में पानी से जरा ऊपर बना हुआ। गर्ज ये थी कि हम खाई नखाई आमदन हलाक करने का गुनाह अपने सर न ले। ऐसे कुएं में डाल देने के बाद बहुत मुमकिन है कि कोई मुसाफिर उधर से गुजरे और खबर पाकर कुएं में से निकाल ले जाए। इस सूरत में हमारा मकसद हासिल हो जाएगा और नाक में हाथ रंगीन न करनी पड़ेंगे, गोया सांप मर जाएगा लाठी न टूटे। इससे मालूम होता है कि पहले भी बाप से इस किस्म के दरखास्त कर चुके थे, मगर उनका दिल उनके साथ भेजने पर मुतमईन नहीं हुआ। यानी ऐसे खूबसूरत बच्चे के कबा घर में खाली पड़े रहने से बेकार हुए जाते हैं। भाइयों ने कहा याकूब अलैहिस्सलाम से, मुनासिब है हमारे साथ इनको बकरियां चराने के लिए जंगल के भेज दीजिए, वहाँ जंगल के फल मेवे खूब खाएगा, खेल कूद से जिस्मानी वर्जिश भी हो जाएगी। कहते हैं उनका खेल भाग दौड़ आती अंदाजी थी। वैसे भी बच्चों के लिए मुनासिब हद तक खेलना, जैसा कि अबू हयान ने कहा, निशात गफ्तगी का मौजूद। गर्ज याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ को साथ ले जाने की पुरजोर दरखास्त की, नहायत मौके तरीकों से इत्मीनान दिलाया कि हम बराबर उसकी हिफाजत करेंगे। मुफस्सिरीन ने लिखा कि खुद यूसुफ को भी जुदागाना तौर पर साथ चलने और बाप से इजाजत लेने की तरगीब दी। यानी यूसुफ की जुदाई तुम्हारे साथ जाने का तस्वुर ही मुझे गमगीन बनाई देता है। याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों से कहा। उस पर यह खौफ मजीद ये रहा कि बच्चा है, तुम्हारी बेखबरी और गफलत में भेड़िया वगैरह कोई दरिंदा न फाड़ खाए। लिखा है कि उस जंगल में भेड़िए कसरत से थे। हज़रत साहब रहमतुल्लाह लिखता है कि उनको आगे चलकर भेड़िए का बहाना करना था, वही उनके दिल में खौफ आया। बाद मुहक्किकीन का ख्याल है कि फरमाना हज़रत याकूब जैसे पैगंबर के दर्जा तवक्कुल व तफवीज़ जरा नाजिल बात थी। उसका जवाब ये मिला कि लड़कों ने गोयान के मुंह में से बात पकड़ ली, जो अंदेशा जाहिर किया था वही वाकया बना कर दिया। यानी अगर हमारी जैसी ताकतवर जमात की मौजूदगी में छोटे भाई को भेड़िया खा जाए तो समझो कि हम बिल्कुल ही गए गुजरे हुए। इससे बढ़कर क्या खसारा होगा कि 10-11 तनुमंद भाइयों की आंखों के सामने से एक कमजोर बच्चा भेड़िए के मुंह में पहुंच जाए। ऐसा हो तो कहना चाहिए कि हमने अपना सब कुछ गवा दिया। मुफस्सिरीन ने बहुत से दरमियानी किसी नहायत दर्द अंगेज और रक्त तखेज पैराया में नकल किया, जिन्हें सुनकर पत्थर का कलेजा मुड़ जाए। खुदा के जाने वो कहाँ तक सही है। कुरान करीम अपने खास नस्ल आइन के एतबार से इसकी तफासिल को ज्यादा दरखूर इतना और लायक जिक्र नहीं समझता, क्योंकि इस अजाजा से कोई फहम मकसद मतलब नहीं। कुरान करीम अपने सामईन के दिल में रकत पैदा करना चाहता है, जिसका मंशा खास ईमान अरफान हो। रकत जो हर काफिर व मोमिन बल्कि हैवानात तक में तबन मुश्तरक है, उस पर आम खुतबा की तरह जोर डालना कुरान की आदत। यहाँ भी इसने दरमियानी बात का हज़फ करके आखिरी बात बतला दी कि बरादरानी यूसुफ को बताए पहली बात के पास ही ले गया। ठहरी हुई करारदाद को माफी कुएं में डालने का तहिया कर दिया। उस वक्त हमने यूसुफ को इशारा किया जिसकी दूसरे को मुतलक खबर नहीं हुई कि घबराओ नहीं, एक वक्त आया चाहता है कि सब कार्रवाइयाँ तुम इनको याद दिलाओगे। उस वक्त तुम ऐसे बुलंद मकाम आला मर्तबा पढ़ोगे कि ये तुमको पहचान न सकेंगे या तौल अहद की वजह से तुमको शनाख्त न कर सकें। ये खुदा ये सारा खाम में हुआ या बेदारी बतरी कलाम हुआ फरिश्ता के जरिए। इसकी तफसील कुरान में अलबत्ता ज़ाहिर अल्फाज को देखकर कहा गया है कि वही का आना 40 बरस की उम्र पर मौकूफ नहीं, क्योंकि हज़रत यूसुफ इस वक्त बहुत कम उम्र थे। वल्लाही या तो घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया या जानबूझकर अंधेरे से आए कि दिन के उजाले में बाप को मुँह दिखाना ज़्यादा मुश्किल था। रात की स्याह चादर दिखाया ये संगदिलियां झूठी और बका की किसी हद तक पर्दादारी कर सकती थी। अमस ने खूब फरमाया, बरादरान ने यूसुफ का गिरवा बका सुनने के बाद हम किसी सब को चश्म बार से सच्चा नहीं समझ सकते। यानी हमने हिफाजत में कुछ कोताही न की, हमारे कपड़े लत्ते वगैरह काबिल हिफाजत चीजें जहाँ रखती वहीं यूसुफ को बैठलाया और एक दूसरे से आगे निकलने को भाग दौड़ शुरू की। बस जरा आंख से ओझल होना था कि भेड़िए ने यूसुफ को आधा पूछा। उस मौका पर इतनी जरा सी देर में एतमाल भी न था कि भेड़िया पहुंचकर फौरन यूसुफ को शिकार कर लेगा। यानी यूसुफ के मामला में पहले ही ये आपको हमारी तरफ से बुद्धिमानी है। अगर आपकी नजदीक हम बिल्कुल सच्चे भी हो तब भी इस मामला खास में किसी तरह हमारी बात का यकीन नहीं कर सकते। एक बकरी का या हिरन वगैरह दबा करके काबुल यूसुफ की कमीज पर छिड़क लाई कि वो झूठा खून पेश करके बाप को यकीन दिलाने लगा कि भेड़िया के जख्मी करने से ये कुत्ता खून आलूद होगा। भला जिसको शाम में बैठ कर मिस्र से यूसुफ के कुत्ता की खुशबू आती थी वो बकरी के खून पर यूसुफ के खून का गुमान कब कर सकता था। उन्होंने सुनते ही झुठला दिया, जैसा कि बाद तफासिर में कहने लगे कि भेड़िया या वाकई बड़ा हलीम मतीन होगा जो यूसुफ को ले गया। खून आलूदा कुत्ता को निहात एहतियात से सही सालिम उतार कर रख गया। सच है दरो गो हाफिज़ खून के छींचे तो दिए, मगर ये ख्याल न रहा कि कमीज को बेतरतीबी से नोच कर और फाड़ कर पेश कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने साफ तौर पर फरमा दिया कि सब तुम्हारी सब साजिश और अपने दिलों से में तराशी हुई बातें हैं। बहरहाल मैं सब्र जमील अख्तियार करता हूँ जिसमें किसी गैर के सामने शिकवा न होगा। तुमसे इंतकाम की कोशिश सिर्फ अपने खुदा से दुआ करता हूँ कि इस सब्र में मेरी मदद फरमाए। अपने अनाथ गैबी से जो बातें तुम जाहिर करो उनकी हकीकत इस तरह आश्कारा कर दे कि सलामती के साथ यूसुफ से दोबारा मिलना नसीब हो। मालूम होता है कि याकूब अलैहिस्सलाम को मतलब कर दिया गया था कि जिस इम्तिहान में मुब्तला की गए हो पूरा होकर रहेगा। एक मुद्दत मुअय्यन के बाद इस मुसीबत से निजात मिलेगी। फिलहाल ढूंढने या इंतकामी तदाबीर अख्तियार करने से कोई फायदा नहीं। यूसुफ अभी मिलेंगे नहीं, हाँ दूसरे बेटे सारी दुनिया में रुसवा हो जाएंगे और मुमकिन है तैस में आकर खुद याकूब अलैहिस्सलाम को ईजा पहुंचाने की कोशिश करें।
कहते हैं 3 रोज तक यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में रहे। कुदरत इलाही ने हिफाजत की। एक भाई यहूदा के दिल में डाल दिया कि वो हर रोज कुएं में खाना पहुंचा आता था। वैसे भी सब भाई खबर रखते थे, मरे नहीं, किसी दूसरे मुल्क का मुसाफिर निकाल ले जाए तो हमारे दरमियान से ये कांटा निकल जाए। सच है गुल सादी बदर चश्म दुश्मनाने आखिर मदयन से मिस्र को जाने वाला एक काफिला उधर से गुजरा। उन्होंने कुआं देखकर अपना आदमी पानी भरने को भेजा। उसने डोल फांसा तो हजरत यूसुफ छोटे तो थे ही, डोल में हो बैठे और रस्सी हाथ से पकड़ ली। खींचने वाले ने उसने जमाल देकर बेसाख्ता खुशी से पुकारा, ये तो अजीब लड़का, बड़ी कीमत को बिकेगा। यानी खींचने वाले ने इस वाक़े को दूसरे हमराहियों से छुपाना चाहा कि और को खबर होगी तो सब शरीक हो जाएंगे। शायद ये जाहिर किया कि गुलाम उसके मालिकों ने मुझको दिया था मिस्र के बाजार में फरोख्त कर, यानी भाई बेवतन करना चाहते थे। काफिला वाले बेचकर दाम वसूल करने का इरादा कर रहे थे। खुदा ताला खजान मिस्र का मालिक बनाना चाहता था। वो अगर चाहता तो इन रावियों को एक सेकंड में रोक देता, लेकिन उसकी मसलियत ताखिर में थी, इसलिए सब चीज़ों को जानते देखते हुए उन्हें ढील दे गई। भाइयों को खबर हुई कि काफिला वाले निकाले गए। वहाँ पहुंचे, जाहिर किया कि हमारा गुलाम भाग आया है। क्योंकि इसे भागने की आदत है, इसलिए हम रखना नहीं चाहते। तुम खरीद तो खरीद सकते हो, मगर बहुत सख्त निगरानी रखना, कहीं भाग न जाए। कहते हैं 18 दिरहम की कमोबेश में बेच डाला। 9 भाइयों ने 2-2 दिरहम, तकरीबन 8 आने बांट लिए। एक भाई यहूदा ने हिस्सा नहीं दिया। यानी इस कदर अर्जा बेचने से ताजुब मत करो, वो इतने बेजार थे कि मुफ्ती ही दे डालती तो मुस्तबिल न था। जो पैसे मिल गए गनीमत समझा। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि आयत में उस बे का जिक्र है जो काफिला वालों ने मिस्र पहुंचकर किया। अगर ऐसा हो तो कहा जाएगा कि पड़ी हुई चीज की कदर न की और ये अंदेशा रहा कि फिर कोई और दावा न कर बैठे। आवक भगोड़ा होने का ऐप सुन चुके थे, इसलिए सुनते ही दामों बेच डाला। मल्लाही कहते हैं मिस्र पहुंचकर नीलाम हुआ। अजीज मिस्र जो वहाँ का मदार अलहान था, उसकी बोली पर मामला खत्म हुआ। उसने अपनी औरत जुलेखा या राइल से कहा कि नहायत प्यारा कबूल सूरत और नहार लड़का मालूम होता, उसको पूरी इज्जत आबरू से रखो, गुलामों का मामला मत करो, शायद बड़ा होकर हमारे काम आए, हम अपना कारोबार इसके सुपुर्द कर देंगे, या जब औलाद नहीं तो बेटा बना लिया। यानी हमने अपनी कुदरत कामला तदबीर लतीफ से यूसुफ को भाइयों की हासदाना सख्ती और कुएं की कैद से निकालकर अजीज मिस्र के यहाँ पहुंचा दिया। फिर उसके दिल में यूसुफ की मोहब्बत बखत अलका फरमाई। इस तरह हमने उनको मिस्र में एक मुअज़्ज़ज़ जगह दी और अहले मिस्र की नजरों में उनको वजीह महबूब बना दिया, ताकि ये चीज़ आइंदा तरक्यात और सरबुलंदियों का पेश कीमा हो और बनी इसराइल को मिस्र में बसाने का जरिया बनी। साथ ही ये भी मंजूर था कि अजीज मिस्र के यहाँ रहकर बड़े सरदारों की सोहबत में देखे, सल्तनत की रमूज असारात समझने और तमाम बातों को उनके ठिकाने पर बिठाने का सलीका और तजुर्बा हासिल हो। तब भी इसी सूरत के पहले रुक में तावील आदिस का लफ्ज़ गुजर चुका है। इसकी तफसीर वहाँ मुलाहिजा करी जाए, यानी पहले हम पढ़ चुके हैं। यानी भाइयों ने यूसुफ को गिराना चाहा, खुदा ने उनको आसमान रफ़त पर पहुंचा दिया। अक्सर लोग कोता नजरी से देखते नहीं कि इंसानी तदबीरों के मुकाबला में किस तरह खुदा का बंदोबस्त गालिब आता है। यानी जब यूसुफ के तमाम कवाहद कमाल को पहुंच गए तो खुदा के यहाँ से अजमशान हिकमत का फायदा पहुंचा। नहायत मुश्किल अकदे अपने फहम रिसाले हल करके बड़ी खूबी दानाई से लोगों की नज़ात चुकाते, दीन की बारीकियाँ समझते, जो जुबान से कहते वो करके दिखा, सफियाना अखलाक से कितन पाक वसाफ और इल्म शराय के पूरे माहिर थे। ताबीर रोया यानी खापी ताबीर का इल्म तो उनको मखसूस हिस्सा था। जो लोग फितर की रहनुमाई का या तकरीर सालिहीन तौफीक के अजली से नवाइब व हवादिस पर साबरा रहकर उम्दा अखलाक का नेक चाल चलन अख्तियार करते, हक़ तआला उन पर ऐसे ही नाम फरमाता है। उधर तो अल्ताफ़ ग़ैबिया हज़रत यूसुफ को अजीब गरीब तरीक़े से तरबियत फरमा रही थी। इधर अजीब की बीवी जुलेखा ने उनके सामने एक नहायत ही मुज़ल्लता अक़दाम मौका इम्तिहान का खड़ा कर दिया। यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल पर जुलेखा मफ्तून हो गया। दिलकशी व हुस्न रबाई के सारे सामान जमा करके चाह के यूसुफ के दिल को उनके काबू से बाहर कर दिया। एक तरफ ऐश निशात के सामान नफसानी जज्बात पूरे करने के लिए हर किस्म की सहूलतें यूसुफ अलैहिस्सलाम का हर वक्त जुलेखा के घर में मौजूद रहना, इसका नहायत मोहब्बत और प्यार से देखना, तनाई के बाद खुद औरत की तरफ से एक ख्वाहिश का बेतवाना इज़हार, किसी गैर के आने जाने के सब दरवाजे बंद, दूसरी तरफ जवानी की उम्र, कुव्वत का ज़माना, मिजाज का इतदाल, तजर्रुद की ज़िंदगी, सब दवाई असबाब ऐसे थे जिनसे टकराकर बड़े से बड़े जाहिद का तकवा भी पास हो जाता। मगर खुदा ने जिसको मुहसिन करार देकर इल्म हिकमत के रंग में रंगीन किया और पैगम्बराना असमत के बुलंद मकाम पर पहुँचाया, उस पर क्या मजाल थी कि शैतान का काबू चल जाता। उसने एक लफ्ज़ कहा, माज़अल्लाह, खुदा की पनाह, शैतानी जाल के सारे हल्के तोड़ दिए। अल्लाह क्योंकि जिसने खुदा की पनाह ली उस पर किसी का वार चल सकता है। यानी खुदा की पनाह में ऐसी कभी हरकत कैसे कर सकता। अलावा बड़ी अजीज मीर मुरब्बी है जिसने मुझे ऐसी इज्जत बराहत से रखा, क्या मैं अपने मोहसिन के नामूस पर हमला करूँ? ऐसी मोहसिन कसी बेइंसाफी करने वाले कभी भलाई कामयाबी का मुँह नहीं देख सकते। ने जब ज़ाहिरी मुरब्बी का हमको इस कदर पास है तो समझ लो कि उस परवरदिगार हकीकी से हमें किस कदर शर्माना हया करना चाहिए, जिसने महज अपने फर्ज से हमारी तरबियत फरमाया, अपने बंदों को हमारी खिदमत बराहत रसानी के लिए खड़ा कर दिया। बाद मुफस्सिरीन ने इन्नहु रब्बी के ज़मीर अल्लाह ताला की तरफ राजा किया। यानी औरत ने फांसने की फिक्र की और उसने फिक्र की कि औरत का दाव चलने न पाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल रब्बिल आलमीन। रब्बि ज़िदनी मा रब्बि ज़िदनी मा रब्बि ज़िदनी रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरन मिन अहली। अल्लाहुम्मा हसनी हिसाबी यस्सिर अल्लाहुम्मा हसनी हिसाबी यस्सिर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बहुत रहम वाला। अभी सूरह यूसुफ ही चल रही है, 12वां पारा। यानी औरत ने फांसने की फिक्र, उसने फिक्र की कि औरत का दाव चलने न पाए, अपने रब की हुज्जत व कुदरत का मायना न करता तो
साबित कदम रहना मुश्किल था। बाद मुफस्सिरीन ने वहम बिहा वलक़द हम्मत बिही से इलादा करके लौला बुरहान रब्बिही से मुतल्लक़ किया, जैसे इनका आदत ला तुब्दी बिही लौला रबत अला क़ल्बिहा की तरकीब से। इस वक्त मकसूद यूसुफ के हक़ में हम साबित करना नहीं बल्कि नफ़ी करना था। यूँ होगा कि औरत ने यूसुफ का इरादा किया, यूसुफ भी औरत का इरादा करता अगर अपने परवरदिगार की कुदरत और हजत न देख लेता। बाद में वहम बिहा में लफ्ज़ हम्मा को बमाने मिलान रग़बत के लिया, यानी यूसुफ के दिल में कुछ रग़बत और मिलान बेअख्तियार पैदा हुआ। जैसे रोज़ादार को गर्मी में ठंडे पानी की तरफ तमन रग़बत होती है, लेकिन न वो पीने का इरादा करता है न बेअख्तियारी रग़बत को कुछ मिज़र है, बल्कि बावजूद रग़बत अभी के उससे कितना मुतरिस रहना मज़ीद अजर सवाब का मौजब है। इसी तरह समझ लो कि ऐसे असबाब अदाई कमियों की मौजूदगी से तबा बसरी के माफिक बला अख्तियार इरादा यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में किसी किस्म की रग़बत मिलान का पाया जाना न असमत के नाफिया न उनके मर्तबा को घटाता, बल्कि सही मुस्लिम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह की हदीस है कि अगर बंदा का मिलान किसी बुराई की तरफ हो लेकिन उस पर अमल न किया तो उसके फ़र्द हसनात में न एक नेकी लिखी जाती है। खुदा फरमाता है कि उसने बावजूद रग़बत मिलान मेरे खौफ से उस बुराई को हाथ न लगा। बहरहाल बावजूद अस्तराफ लफ्ज़ी के जुलेखा के हम और यूसुफ के हमने ज़मीन आसमान का तवाफ़ थे, इसलिए कुरान करीम ने दोनों के हम को एक ही लफ्ज़ में जमा नहीं किया और न जुलेखा के हम की तरफ यूसुफ के हम पर लाम और कद दाखिल किया, बल्कि सियाक व इल्हाक़ में बहुत से दलाइल यूसुफ अलैहिस्सलाम की तहारत नज़ाहत पर कायम फरमाए जो गौर करने वालों पर पोशीदा नहीं। तफसील रूह मनानी अकबर वगैरह में मौजूद है। बुरहान दलील हुज्जत को कहते हैं, यानी अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने रब को दलील न देते तो कल्बी मिलान पर चल पड़ते, लेकिन क्या दलील क्या थी? ज़िना की हुर्मत सनाअत का ऐनुल यकीन जो हक़ ताला ने उनको अता फरमाया, वही दलील खुद उन्होंने जुलेखा के मुकाबले में कहकर पेश की। बाद कहते हैं कि खुदा की कुदरत इस वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नजर आए कि अंगुली दांतों में दवाई सामने करे। बाद ने कहा कि कोई गायबी तारी नजर पड़ी जिसमें इस फेल से रोका गया, वल्लाह यानी ये बुरहान दिखाना और ऐसी तरफ साबित कदम रखना इसलिए था कि यूसुफ हमारे पर इज्जत बंदों में लिहाजा कोई छुट्टी बुरी खामखा इरादा के दर्जा में हो या अमल के उन तक न पहुंच सके। आगे यूसुफ थे कि जल्दी से दरवाजा खोलकर निकल जाए, पीछे जुलेखा उन्हें रुकने के लिए ताकुब कर रही थी। इत्तफाका यूसुफ की कमीज का पिछला हिस्सा जुलेखा के हाथ में आ गया, उसने पकड़ कर खींचना चाहा, खींचाता में कुर्ता फट गया, मगर यूसुफ जूं करके मकान से निकलने में कामयाब हुआ। इधर ये दोनों आगे पीछे दरवाजों पर पहुंचे, उधर औरत का खाविन अजीज मिस्र भी पहुंच गया। औरत ने फौरन बात बनानी शुरू की। औरत ने इल्जाम यूसुफ पर रखा, उसने मुझसे बुरा इरादा किया, ऐसे सख्त सजा ये होनी चाहिए कि जेल खाना भेजा जाए या कोई और सख्त मार पड़े। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को वाक़या ज़ाहिर करना पड़ा। औरत ने मेरे नफ्स को बेकाबू करना चाहा, मैंने भागकर जान बचाई। ये झगड़ा अभी चल ही रहा था कि खुद औरत के खानदान का एक गवाह अजीब तरीके से यूसुफ के हक़ में गवाही देने लगा। बाद रवायात से मालूम होता है कि वो सिरखार बच्चा था जो खुदा की कुदरत से हजरत यूसुफ की बारात वजाहत अंदल्ला जाहिर करने को भूल पड़ा। आप बाज़ उलमा कहते हैं कि बच्चा नहीं कोई मर्द दाना था जिसने ऐसी कतव की बात है। वल्लाह अगर गवाह सिरखार बच्चा था जैसा कि बाज़ मुतबर रवायात में, तब तो उसका बोलना और ऐसी गवाही देना जो अंजाम का यूसुफ के हक़ में मुफीद हो खुद मुस्तकिल दलील यूसुफ की सच्चाई की थी। कुत्ता का आगे या पीछे से फटाना शहादत के ज़ात बतूर एक अलामत और करीना के समझना चाहिए। अगर गवाह कोई मर्द दाना था तो बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि वो खारिजी तरीक़े से हकीकत हाल पर मतलब हो चुका था, मगर उसने नहायत दानाई से ऐसी पिराया में शहादत दी जो दफ़तन किसी के जानिबदारी पर भी महमूल न हो। आखिरकार यूसुफ की बारात साबित कर दे जो पैराया इज़हार वाक़या का उसने अख्तियार किया, वह गैर जानिबदारी की नज़ीर नहायत माकूल था, क्योंकि अगर औरत के दावे को माफ़ी यूसुफ ने माज़अल्लाह उसकी तरफ इक़दाम किया तो उनका चेहरा औरत की तरफ होगा तो ज़ाहिर है कि कसम को तभी सामने से फटेगा। अगर यूसुफ का कहना सही है कि औरत पर अपनी तरफ से बुलाती थी, मैं दरवाजा की तरफ भागा तो उसे पकड़ने के लिए मेरा ताक़ुब किया तो खुली हुई बात है कि कुत्ता पीछे से फटा होगा, क्योंकि इस सूरत में यूसुफ उसकी तरफ वजह नहीं थी बल्कि इधर से पीठ फेंक कर भाग रहे। बहरहाल जब देखा गया कि कुत्ता आगे से नहीं पीछे से फटा तो अजीज ने समझ लिया कि ये सब औरत का मकर फरीब है और यूसुफ को सुरवा नहीं, चुनांचा उसने साफ कर दिया कि जुलेखा की कुल फरीब कार्रवाई उसी किस्म की है जो अमूमन औरतें किया करती। उसने यूसुफ से इस्तदा की कि जो होना था हो चुका, आइंदा इसका जिक्र मत करो कि सख्त रुसवाई बदनामी का मौजब। औरत को कहा कि यूसुफ से या खुदा से अपने कसूर की माफी मांगी, यकीनन कसूर तेरा ही था। यानी सुधा शहर की औरतों ने कहना शुरू किया कि अजीज की औरत अपने नौजवान गुलाम पर मफ्तून हो गई, चाहती है कि उसके नफ्स को बेकाबू कर दे। गुलाम की मोहब्बत उसके दिल की तह में पेवस्त हो चुकी है। हालांकि ऐसे मुअज्जज अहदेदार की बीवी के लिए ये सख्त शर्मनाक बात है कि वो एक गुलाम पर गिरने लगे। हमारे नज़दीक इस मामला में एलानिया गलती पर औरतों की गुफ्तगू को मकरू फरेब इसलिए कहा कि मक्कारों की तरह छुप छुप कर ये बातें करती थी और जुलेखा पर तान करके गोया अपनी पारसाई का इज़हार मकसूद था। हालांकि यूसुफ के बेमिसाल हुस्न जमाल का शोहरा जिस औरत के कान में पड़ता था उसकी दीदार का इश्तियाक दिल में चिटकियां लेने लगता। कुछ बात नहीं कि जुलेखा पर तान तस्नी आत्मतचीनी करने वालों के दिलों में यही गर्ज पोशीदा हो कि जुलेखा को गुस्सा दिलाकर किसी ऐसी हरकत पर आमादा कर दे जो यूसुफ के दीदार का सबब बन जाए, या जुलेखा के दिल में इसकी नफरत बैठाकर अपनी तरफ मायल करने का मौका निकाले। ये भी मुमकिन है कि जुलेखा ने बाद औरतों को इस मामले में अपना राजदार बनाया, उसने राजदारी की जगह पर गद्दारी कुर्दगिरी का शुरू कर दी। बहरहाल उनकी गुफ्तगू को लाज़िम से अदा करने में ये सब एहतमालात हैं। यानी दावत करके उन औरतों को बुलवा भेजा और खाने पीने की एक मजीद तरतीब दी जुलेखा ने, जिसमें बात चीजें चाकू से तराश कर खाने की थी। चुनांचे खाने और मेवे वगैरह उनके सामने चुनकर हर एक औरत के हाथ में एक चाकू दे दिया। तराशने के काबिल चीजों के खाने में किसी को कुल्फत इंतजार उठाना न पड़े। सब सामान दुरुस्त करके उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो कहीं करीब ही मौजूद थे आवाज़ दिए थे कि इधर निकल आए। निकलना था कि बिजली सी कूद गई। तमाम औरतें यूसुफ के हुस्न जमाल का दफतन मुशाहदा करने से होश हवास को बैठी और मदहोशी के आलम में छुरियों से फलों की जगह हाथ काट ली। गोया कुदरत एक मुस्तकिल दलील यूसुफ अलैहिस्सलाम की नज़ारत सदाकत पर कायम फरमा दी, जिसके जमाल बेमिसाल की जरा सी झलक देखने वाली औरतों की हवास गूंगा दी। बाहर कि यूसुफ ने आंख उठाकर भी उनके हुस्न वकूबी की तरफ न देखा तो यकीनन वाकया यूं ही हुआ होगा कि जुलेखा के जमाल होश को देखकर होश खुद खो बैठी। वो मासूम फरिश्ता की तरह अपना दामन इफ़्फ़त बचाता हुआ साफ निकल गया। यानी हुस्न जमाल नूरानी सूरत के तबा से फरिश्ता मालूम होता है। किसी ने खूब कहा बहाया इफ़्फ़त आपाकदामी जो चेहरा जाल झाल से टपक रहा है, उसे देखकर कहा याद नहीं कोई मासूम फरिश्ता मालूम होता है। अब जुलेखा को
मौका मिला कि औरतों के तान तस्नी का तीर उन्हीं की तरफ लौटा दी। गोया इस वक्त फज़ालिकुन्नल लज़ी लुमतुन्नी फ़ीही कहकर वो इस शेर का खुलासा अदा कर रही है। मजमा का रंग देखकर जुलेखा बिल्कुल खिल पड़ी और वाक़या का साफ साफ इजहार कर दिया कि बेशक मैंने उनका दिल लेना चाहा था, मगर इस बंदा खुदा ने ऐसा मजबूत थामे रखा कि किसी तरह न दिया। ये खुदा ताला ने इस शहर की औरतों को मजमा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमाल असमत और इफ़्फ़त और गायत नज़ाहत और तहारत का इकबाली सबूत पेश कर दिया। जुलेखा का हाल इस वक्त वही था जो किसी ने कहा। जुलेखा की इस गुफ्तगू में कुछ औरतों पर अपनी माजूरी या मुरादी का इज़हार था उनकी हमदर्दी हासिल कर सकता, कुछ यूसुफ अलैहिस्सलाम की तहक़ीमाना धमकियों से मरूब करना था कि वो खौफज़दा होकर उसके मतलब पर बराबर आमादा हो जाए। हालांकि मालूम होता है कि जुलेखा का मायूसाना गुस्सा और मज़लूमाना अंदाज बयान ने इसकी ये हम जिनसों पर असर कर गया। पहले ही कुछ मिली भगत होगी। बहरहाल लिखा है कि अब औरतों ने यूसुफ को समझाना शुरू किया कि तुमको अपनी मोहसिना सैयदा का कहना मानना चाहिए। आप इस गाड़ी पर इतना जुल्म क्यों करते हो? फिर ये भी सोच लो कि नाफरमानी का नतीजा क्या होगा। खामखा मुसीबत पर सर पर लेने से क्या बात। कहते हैं कि बज़ाहिर ज़ुबान से वो जुलेखा की सिफारिश कर रही थी, मगर दिल हर एक का यूसुफ को अपनी तरफ खींचना चाहता था। यूसुफ ने जब देखा कि ये औरत बेतरह पीछे पड़ रही है, शैतान हर तरफ अपना जाल बिछाने लगा, तो नहायत अज़्म इस्तक़लाल पैगम्बराना इस्तक़ामत से बारगाह अदीयस में दरख्वास्त की कि मुझे इनके मकरू फ़रेब से बचाइए। अगर इस सिलसिले में कैद होना पड़े तो मैं कैद को इत्तेकाम मसय्यत पर तरजीह देता हूँ। अगर आप मेरी दस्तगीरी न फरमाएंगे तो डरा कि बेअक़ल होकर उनकी आबला फ़रेबियों की तरफ झुकना पड़ूँ। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी ये जतला दिया कि अंबिया की असमत भी हक़ ताला की दस्तगीरी चाहिए कि वो अपनी असमत पर मग़रूर नहीं होते, बल्कि असमत का जो मंशा है हिफाज़त व सयानत इलाही उसी पर नज़र रखते हैं। यानी उनको असमत व इफ़्फ़त पर पूरी तरह साबित कदम रखा, किसी का फ़रेब न चलने दिया। यानी सबकी दुआएं सुनता है, खबर रखता है। हज़रत साहब रहमतुल्लाह लिखते हैं, ज़ाहिर मालूम होता है कि अपने मांगे से कैद में पड़े, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना ही कबूल फरमाया कर उनका फ़रेब दफ़ा कर दिया। बाकी कैद होना था किस्मत में। आदमी को चाहिए कि घबराकर अपने हक़ में बुराई न मांगे, पूरी भलाई मांगे, वो होगा वही जो किस्मत में है। तिरमिज़ी में है कि एक शख्स को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगते सुना, अल्लाह इन्नी असअलुका सब्र, अल्लाह मैं तुझसे सब्र मांगता हूँ। आपने फरमाया सअल तो अल्लाह तूने अल्लाह से भला तलब की, क्योंकि सब्र तो भला पर होगा, अब तू इससे आफियत मांग। यानी बावजूद कि हज़रत यूसुफ की बरात नज़ाहत की बहुत से निशान देख चुके थे, फिर भी उनकी मसलिहत ये हुई कि यूसुफ को एक मुद्दत तक कैद में रखा जाए, ताकि आम लोग समझे कि कसूर यूसुफ ही का था। औरत बेचारी बेमुफ्त में बदनामी, गोया औरत ने कैद की जो धमकी दी थी उसे पूरा करके छुड़ा। उन लोगों की गर्ज यही होगी कि औरत से बदनामी ज़ाहिर होगी। एक मुद्दत तक यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी नज़र से दूर रहे। औरत का मतलब ये होगा कि शायद ये कैद की सख्तियाँ उठाकर यूसुफ को कुछ न पाए, इस तरह अपना मतलब निकाल सकूँ। यानी उसी ज़माने में दो नौजवान कैदी जेलखाना में लाए गए, जिनमें एक बादशाह मिस्र रैयान बिन वलीद का नाबनाई और दूसरा साकी शराब पिलाने वाला था। दोनों बादशाह को ज़हर देने की इल्जाम में माखूज़ थे। कैद खाना में यूसुफ अलैहिस्सलाम की मरवत, अनात, रास्तगोई, हुस्न अखलाक, कसरत इबादत, मार्फत, ताबीर, हमदर्दी, खलाक़ का चर्चा था। दोनों कैदी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत मायूस हो गए। आप बड़ी मोहब्बत का इज़हार करने लगे। एक रोज़ दोनों ने अपना अपना ख्वाब बयान किया। साकी ने कहा, मैं ख्वाब में देखा कि बादशाह को शराब पिला रहा हूँ। नाबनाई ने कहा कि मेरे सर पर कई टोकरे हैं जिसमें से परिंदे नोचकर खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुजुर्ग देखकर ताबीर मांगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अव्वल इनको तसल्ली दी कि बेशक ख्वाबों की ताबीर तुम्हें बहुत जल्द मालूम हुआ चाहती है। रोज़मर्रा जो खाना तुमको मिलता है उसके आने से पेशतर में ताबीर बतलाकर फारिग हो जाऊंगा, लेकिन ताबीर ख़ास से ज़्यादा ज़रूरी मुफीद एक चीज़ पहले तुमको सुनाता हूँ, वो ये कि ताबीर वगैरह का ये इल्म मुझको कहाँ से हासिल हुआ। सो याद रखो, मैं कोई पेशेवर काहिन या नजूमी नहीं, बल्कि मेरे इल्म का चश्मा बस वही और इल्हाम रब्बानी है जो मुझको अल्लाह ताला ने इसकी बदौलत अता फरमाया। मैंने हमेशा काफिरों और बातिल परस्तों के दीन मिल्लत को छोड़े रखा है। अपने मुक़द्दस आबा अजदाद हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक़, हज़रत याकूब जैसे अंबिया मुरसलीन के दीन तौहीद पर चला, उनका अस्वा हुस्ना अख्तियार किया। हमारा सबसे बड़ा मुक़द्दम मतमा नज़र यह है कि रहा कि दुनिया के किसी चीज़ को किसी दर्जा में भी खुदा का शरीक न बनाए, न ज़ात में, न सफ़ात में, न अफ़ाल में, न रबूबियत माबूदियत में। उसी के आगे झुके, उसी से मोहब्बत, उसी पर भरोसा रखें। अपना जीना मरना सिर्फ इसी एक परवरदिगार के हवाले कर। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मौका मुनासिब देकर नहायत मुसर तर्ज में उनका को ईमान तौहीद की तरफ आने की तरगीब दी। पैगम्बरों का काम यही होता है, दावत तबलीग हक़ का। कोई मुनासिब मौका हाथ से न जाने दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि इन कैदियों के दिल में मेरी तरफ मुतवज्जा और मुझसे मानूस है। कैद की मुसीबत में गिरफ्तार होकर शायद कुछ नर्म भी हुए होंगे। लाओ इन हालात से फर्ज तबलीग अदा करने में फ़ायदा उठाएं। अव्वल इनको दीन की बातें सिखलाई, फिर ताबीर भी बतला दिए। ये तसल्ली पहले कर दी कि खाने के वक्त तक ताबीर मालूम हो जाएगी, तब वो नसीहत से उकताए नहीं। तब ये बहुत से मुफस्सिरीन ने के माने लिया कि कभी खाना तुम्हारे पास नहीं आता, मगर मैं आने से पहले उसकी हकीकत तुमको मतलब कर दिया करता हूँ। यानी आज क्या खाना आएगा, किस किस्म का होगा, फिर ताबीर बतलाना क्या मुश्किल है। अव्वल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुजज़्ज़ा की तरफ तवज्जो दिलाकर उन्हें अपनी नबूवत का यकीन दिलाना चाहता है कि आइंदा जो नसीहत करे ज़्यादा मौसर वाक़या फी नफ्सु। इस तकदीर पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये मुजज़्ज़ा ऐसा होगा जैसे हज़रत मसीह ने फरमाया था। पहली तफसीर अर्ज़ किया वल्लाह हज़रत शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने कैद में यही हिकमत रखी कि उनका दिल काफिरों की मोहब्बत से, यानी काफिर जो उनकी मोहब्बत मदारात करते थे, उससे टूटा तो दिल पर अल्लाह का इल्म रोशन हुआ। चाहा कि अव्वल उनको दीन की बात सुना दी, पाए ताबीर ख्वाब कहीं इस वास्ते तसल्ली करी था, न घबराई, कहा कि खाने के वक्त वो भी बता दूंगा। यानी
हमारा खालिस से तौहीद मिल्लत इब्राहिम पर कायम रहना न सिर्फ हमारे हक में बल्कि सारी जहां की आपकी रहमत फजल, क्योंकि खानदान इब्राहिम ही की समत से सब लोग अपने दिलों के चिराग रोशन कर सकते हैं। लेकिन अफसोस है कि बहुत से लोग खुदा की इस नेमत अजीमा की कदर नहीं करते। चाहिए ये था कि उसके एहसान मानकर राय तौहीद पर चलते और उनकी नाशुक्री करके शिर्क व इस्यान की राह अख्तियार कर रहे हैं। यानी मुख्तलिफ अनवार के छोटे बड़े देवता जिन पर तुमने खुदा एक तरह तकसीम कर रखे उसे लौ लगाना बेहतर, या उसके अकेले जबरदस्त खुदा थे जिसको सारी मखलूक पर कुल इख्तियार कामिल तसर्रुफ व कब्जा हासिल हो। आज जिसके आगे ना किसी का हुक्म चल सकता है, ना अख्तियार, ना उसे कोई भाग कर हटा सकता है, ना मुकाबला करके मखलूक कर सकता है। खुद सोचो कि सर अबूदियत में से किसके सामने झुकाया जाए। यानी यूं ही बेसंद और बेठिकाने कुछ नाम रख छोड़े हैं जिनके नीचे हकीकत जरा बड़ा, इन्हीं नाम के खुदाओं को पूजा कर रहे हैं। ऐसे जहल पर इंसान को शर्माना चाहिए। यानी कदीम से अंबिया अलैहिस्सलाम की जुबानी यही हुक्म भेजता रहा कि खुदा की इबादत में किसी को शरीक मत करो। यानी तौहीद खालिस के रास्ता में ये चीज़ कुछ नहीं, सीधी और साफ सड़क है जिस पर चलकर आदमी बेखटके खुदा तक पहुंचता है। लेकिन बहुत से लोग हिमाकत या तासुब से ऐसी सीधी बात को नहीं समझते। फर्ज तबलीग अदा करने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके ख्वाबों की ताबीर बयान फरमाई। जिसने ख्वाब में शराब पिलाते देखा उसकी ताबीर यह कि वो बेदारी में बादशाह को शराब पिलाएगा। जिसने सर पर से जानवरों को रोटियां खाते देखा उसका मतलब कि वसूली दिया जाएगा, फिर जानवर उसके सर से नोच नोच कर खाएंगे। एक कदर का फैसला यही है जो किसी एक टाले टल नहीं सकता। जो बात तुम पूछते थे वो मैंने बतलाई, ये बिल्कुल तय शुदा अम्र है जिसमें तखल्लुफ नहीं हो सकता। चुनांचे ऐसा ही हुआ, साकी ज़ाहिर कुरानी की तहमत से बरी हो गया। खवाज नाबनाई जो जुर्म साबित होने की वजह से सजाई मौत दी गई। यहाँ जन यकीन के मानी में है अल्लाज़िना यज़ुन्नुना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के दोनों में से जिस शख्स की बाबत यकीन था कि बरी हो जाएगा। जब वो कैद खाना से निकला तो फरमाया अपने बादशाह की खिदमत में मेरा भी जिक्र करना। एक ऐसा शख्स बेकसूर कैद खाना में बरसों से पड़ा है, मुबालगा की जरूरत है, मेरी जो हालत उन्हें मुशाहिदा की है भला कम कास्ट कह देना। यानी शैतान ने छूटने वाले कैद के दिल में मुख्तलिफ ख्यालात वसाविस डालकर ऐसा गाफिल किया कि उसे बादशाह के सामने अपने मोहसिन बुजुर्ग यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा करना याद ही न रहा। नतीजा ये हुआ कि यूसुफ को कई साल और कैद में रहना पड़ा। मुद्दत दराज के बाद जब बादशाह ने एक ख्वाब देखा उसकी ताबीर किसी के समझ में न आई, तब उस शख्स को यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद आई। जैसा कि आगे आता है, भुलाने की निस्बत शैतान की तरफ से इसलिए की गई कि वालकाए वसाविस वगैरह का जरिया जो सबब बनता है नस्यान का हज़रत मूसा के रफीक सफर ने कहा था। लेकिन हर एक शर में हक ताला की कोई खैर का पहलू रख देता है। यहाँ भी इसका नतीजा ततवील कैद की सूरत में जाहिर हुआ। ताहम हज़रत तारीनी के माफी इसमें यह तबिया हो गया कि एक पैगम्बर का दिल ज़ाहिरी असबाब पर नहीं ठहरना चाहिए, बल्कि इब्न जरीर बागवी वगैरह ने बात सल्फ से नकल किया है कि ज़मीर यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ राजा करते हैं। गोया एक तरफ की गफलत थी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को आरज़ी। उन्होंने कैदी को कहा कि अपने रब से मेरा जिक्र करना, हालांकि चाहिए था कि सब ज़ाहिरी सारे छोड़कर खुद अपने रब से फरियाद कर। बेशक कस्ब व शराइत के वक्त मखलूक से ज़ाहिर इस्तनात असबाब की मुबासरत मतलब हराम नहीं, लेकिन अबरार की हसनात मुकर्रबीन की सयाहत बन जाती। जो बात आमतुन्नास बेखटके कर सकते हैं अंबिया अलैहिस्सलाम की मनसब आली के तबाह से, वही बात एक किस्म की तकसीर बन जाती। इम्तिहान व इब्तिला के मौके पर अंबिया की शान रफ़ी इसी को मुक्तज़ा है कि रुखसत पर नजर न करे, इंतहाई अज़मियत की राह चले। क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कहना अज़मियत के खिलाफ था, इसलिए अताब आमिज़ तंबिया हुई कि कई साल तक मजीद कैद उठानी पड़ी और इसलिए इंसान की निस्बत शैतान की तरफ की गई। वल्लाह अल-मुस्तफ़ा ज़्यादा तफसील दून मनानी में है। वो सूखी वाले हरी बालों पर लिपटी हैं, उन्हें खुश कर देती हैं। ये ख्वाब बादशाह मिस्र रयान बिन वलीद ने देखा कि जो आखिरकार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई आज़ादी और उसका सबब बना। यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में जा बजा इस पर मुतनब्बा फरमाया कि खुदा जब कोई बात चाहता है तो गैर मुतवक्का तरीक़े से उसके ऐसे असबाब फराहम कर देता है जिनकी तरफ आदमी का ख्याल नहीं जाता। यानी अगर इस फन में कुछ महारत रखते हो तो मेरे ख्वाब की ताबीर बतलाओ। मालूम होता है कि वो लोग इस फन से जाहिल थे, अपने जहल का साफ लफ्ज़ में इकरार करने से शर्माए तो यूँ बात बना दी कि कोई ख्वाब नहीं, माज़ परेशान ख्यालात है। बसा औक़ात इंसान को नींद में ऐसी सूरतें मुखय्यल हो जाती है जो लायक इत्तना नहीं। न हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर का इल्म रखते हैं क्योंकि वो इल्म ताबीर रोया के उसूल के मातहत नहीं होती। अब ख्वाब के सिलसिले में साकी जो कैद से छूट कर आया था, मुद्दत के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए। उसने बादशाह और अहले दरबार से कहा कि अगर मुझे जरा जाने की इजाज़त दो तो मैं इस ख्वाब की ताबीर ला सकता हूँ। कैद खाना में एक मुक़द्दस बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया जो आगे आता है। कहने से गर्ज थी कि आप मुजस्सम सच हैं, जो बात कभी आपकी ज़ुबान से निकली सच होकर रही। उम्मीद है जो ताबीर इस ख्वाब के देंगे हूबहू पूरी होकर रहेगी। ये लफ्ज़ बतला रहा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की सिद्क़ व दयानत का नक्श की तरह आम व ख़ास के कुलूब पर बैठ जाता है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाह अदद ख़ल्क़िही, सुब्हानल्लाह रिज़ा नफ़्सिही, सुब्हानल्लाह ज़ीनत अर्शिही, सुब्हानल्लाह मिदाद कलिमातिही, अल्हम्दुलिल्लाह अदद ख़ल्क़िही, अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ा नफ़्सिही, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीनत अर्शिही, अल्हम्दुलिल्लाह मिदाद कलिमातिही। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरन मिन अहली। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बहुत रहम वाला है। शुरू करती हूँ। 12वां पारा है, एक सफ़ा, उसके बाद 13वां पारा। आज सूरह यूसुफ ही चल रही है। अल्लाह कबूल फरमाए। यानी ख्वाब की ताबीर उसके ज़रिया से आपकी कदर मंज़लत मालूम। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बतलाने में देर न की, न कोई शर्त लगाई, न उस शख्स को शर्मिंदा किया कि तुझको इतनी मुद्दत के बाद अब मेरा ख्याल आया। इससे अंबिया अलैहिस्सलाम के अखलाक व मरवत का अंदाज़ा होता। फिर वो सिर्फ ख्वाब की ताबीर मांगता था। आपने 3 चीज़ें अता फरमाई, ताबीर, तदबीर, तफसीर। आपके कलाम का हासिल ये था कि 7 मोटी गायें और 7 हरी बाली, 7 बरस हैं जिनमें मुतवातर खुशहाली रहेगी, खेतों में खूब पैदावार होगी, हैवानात और नबातात खूब बढ़ेंगे। इसके बाद 7 साल कहत होगा जिसमें सारा पिछला अंदोख्ता खाकर ख़त्म कर डालोगे। सिर्फ आइंदा तुख्म रेजी के लिए कुछ थोड़ा सा बाकी रह जाएगा।
یہ 7 سال دبلی گائیں اور سوکھی بالیں ہیں جو موٹی گایوں اور ہری بالوں کو ختم کر دیں گی۔ تعبیر بتلانے کے دوران میں حضرت یوسف علیہ السلام نے عذرائے شفقت و ہمدردی خلائق ایک تدبیر بھی تلقین فرمائی کہ اول 7 سال میں جو پیداوار ہو اسے بڑی حفاظت سے رکھو اور کفایت شعاری سے اٹھاؤ۔ کھانے کے لیے جس قدر غلہ کی ضرورت ہو اسے الگ کر لو، تھوڑا تھوڑا احتیاط سے کھاؤ، باقی غلہ بالوں میں رہنے دو تاکہ اس طرح کیڑے وغیرہ سے محفوظ رکھ سکے اور 7 سال کے پیداوار 14 سال تک کام آئے۔ ایسا نہ کرے گو تو قحط کا مقابلہ کرنا دشوار ہوگا۔ تعبیر و تدبیر بتلانے کے بعد انہیں بشارت سنائی جو غالباً آپ کو وہی سے معلوم ہوئی ہوگی، یعنی 7 سال قحط رہنے کے بعد جو سال آئے گا اس میں حق تعالیٰ کی طرف سے فریاد رسی ہوگی اور خوب مہ برسے گا، کھیتی باڑی پھل میوے نہایت افراد سے پیدا ہوں گے، جانوروں کے تھن میں دودھ سے بھر جائیں گے، انگور وغیرہ نچیرنے کے قابل چیزوں سے لوگ شراب کسب کریں گے، اور آخری بات سائل کے حسب حال فرمائیں کہ وہ یہی کام کرتا تھا۔ بادشاہ کچھ تو پہلے ہی ساقی کے تذکرے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا موقد ہو گیا تھا، اب جو ایسی موضوع دل نشی تعبیر اور رعایت کی ہمدردی کی تدبیر سنی تو ان کے علم و فضل، عقل و دانش اور حسن اخلاق کا سکہ اس کے دل پر بیٹھ گیا۔ فوراً حکم دیا کہ ایسے شخص کو میرے پاس لاؤ تا اس کی زیارت سے بہر اندوز ہوں اور اس کی مرتبہ اور قابلیت کے موافق عزت کروں۔ کاتب یہ پیام شاہی لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، مگر یوسف علیہ السلام کی نظر میں اپنی دینی اخلاقی پوزیشن کی برتری اور صفائی اعلیٰ سے اعلیٰ دینی عزت وجاہت سے زیادہ مہم تھی۔ آپ جانتے تھے کہ پیغمبر خدا کی نسبت لوگوں کی ادنا بدگمانی بھی ہدایت و ارشاد کے کام میں بڑی بھاری رکاوٹ ہے۔ اگر آج میں بادشاہی فرمان کے موافق چھپ چھپاتے قید خانہ سے نکل گیا اور جس جھوٹی تہمت کے سلسلے میں سالہ سال قید وبال کی مسائل اٹھائی اس کی قطعی طور پر استحصال نہ ہو تو بہت ممکن ہے کہ بہت سے ناواقف لوگ میری عصمت کے متعلق تردد اور شبہ میں پڑ جائیں اور حاسدین کو کچھ زمانہ کے بعد انہیں بے اصل اثرات سے فائدہ اٹھا کر کوئی اور منصوبہ میرے خلاف کھڑا کر دے۔ ان مسائل پر نظر کرتے ہوئے آپ نے حکم شاہی کے امتثال میں جلدی نہ کی بلکہ نہایت صبر استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے کاتب کو کہا کہ اپنے مالک بادشاہ سے واپس جا کر دریافت کر کے تجھ کو ان عورتوں کے قصہ کی کچھ حقیقت معلوم ہے جنہوں نے دعوت کے موقع پر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے ناموں کی تفصیل کہاں معلوم ہوا؟ یہ خیال ہوا کہ ایسا واقعہ ضرور عام صورت حاصل کر چکا ہے، اس لیے واقعہ کی ایک ممتاز جو ہاتھ کاٹنے کو ظاہر کر کے بادشاہ کو توجہ دلائے کہ اس مشہور و معروف قصہ کی تفتیش و تحقیق کرے۔ غالباً وہ عورتیں بتلا دیں گی کہ تقصیر کس کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کی حدیث میں حضرت یوسف علیہ السلام کے کمال سب تحمل کی طرف ڈال دی۔ اگر میں اتنی مدت قید میں رہتا جتنا یوسف رہے تو بلانے والی کی اجابت کرتا، یعنی فوراً ساتھ ہو لیتا۔ محققین کہتے ہیں کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی صبر تحمل کی تعریف اور لطیف رنگ میں اپنی عبودیت کا عملہ کا اظہار ہے۔ ہم نے اس مضمون کی تفصیل شرح صحیح مسلم میں کیا، یہاں کرنا اختصار کی وجہ سے زیادہ نہیں لکھ سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کا فریب فرمایا اس واسطے کہ ایک کا فریب تھا اور سب اس کی مددگار تھی۔ اصل فریب باری کا نام شاید حق پروس کی وجہ سے نہیں لیا، حیا کی وجہ سے گول مول فرمایا کیونکہ جانتے تھے کہ اصل حقیقت آخر کھل کر رہے گی۔ قضا فی موضوع بادشاہ نے دریافت کرنے کا ایسا عنوان اختیار کیا کہ گویا وہ پہلے سے خبر رکھتا ہے تا یہ دیکھ کر انہیں جھوٹ بولنے کی ہمت نہ ہو۔ نیز یوسف علیہ السلام کی استقامت سب کا اثر پڑا ہوگا کہ بدون اظہار برات کے جیل سے نکلنا گوارا نہیں کرتی کہہ کر ان کے قید کا اظہار فرما رہے۔ ادھر ساقی وغیرہ نے واقعات سنائے ہوں گے، ان سے بھی یوسف کی نزاعت عورتوں کی مکاری کی تائید ہوگی۔ سب عورتوں کو متفقہ شہادت کے بعد خود زلیخا نے بھی صاف اقرار کر لیا کہ قصور میرا، یوسف علیہ السلام بالکل سچے ہیں، بے شک میں نے ان کو اپنی جانب مائل کرنا چاہا تھا لیکن وہ ایسے کاہے کو تھے کہ میرے داؤں میں آ جاتے۔ یعنی اتنی تحقیق و تفتیش اس لیے کرائی کہ پیغمبرانہ عصمت و دیانت بالکل آشکارا ہو جائے اور لوگ معلوم کرنے کے خائنوں اور دغابازوں کا فریب اللہ چلنے نہیں دیتا۔ چنانچہ عورتوں کا فریب نہ چلا، آخر حق ہو کر رہا۔ چونکہ حضرت یوسف نے اپنی برات پر بہت زیادہ زور دیا، ممکن تھا کہ کوئی ساتھی آدمی اس سے فخر و ناز اور غرور و اعجاب کا شبہ کرنے لگتا، اس لیے اپنی نزاہت کی حقیقت کھول دی کہ میں کوئی سخی نہیں مارتا، نہ پاک صاف رہنے میں اپنے نفس پر بھروسہ کر سکتا، محض خدا کی رحمت و عنایت ہے جو کسی نفس کو برائی سے روکتی ہے۔ یہی رحمت خصوصی عصمت انبیاء علیہ السلام کی کفیل ضامن ہے، ورنہ نفس انسانی کا کام عموماً برائی کی ترغیب دینا تھا۔ خدا تعالیٰ کی خصوصی توفیق و دستگیری نہ ہوتی تو میرا نفس بھی دوسرے نفوس بشریہ کی طرح ہوتا۔ غفور الرحیم سے اشارہ کر دیا کہ نفس امارہ جب توبہ کر کے لوامہ بن جائے تو خدا اس کی پچھلی تقصیرات معاف فرما دیتا، بلکہ رفتہ رفتہ اپنی مہربانی سے نفس مطمئنہ کے درجہ تک پہنچا دیتا ہے۔ تب یہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، ابن کثیر وغیرہ نے ظاہر کر لیا لما انی لہو اخو سے غفور الرحیم تک زلیخا کا معقولہ قرار دیا، یعنی زلیخا نے کا اقرار کرتے کہا کہ اس اقرار و اعتراف سے عاجز کو یہ معلوم کرانا ہے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے کوئی بڑی خیانت نہیں کی۔ بے شک یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا تھا مگر میری مراد ان پر کارگر نہ ہوئی، اگر میں نے مزید خیانت کی ہوتی تو ضرور اس کا پردہ فاش ہو کر رہتا، کیونکہ خدا خائنوں کے مکر و فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ ہاں، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، جتنی غلطی مجھ سے ہوئی اس کا اقرار کر رہی ہوں، دوسری آدمیوں کی طرح نفس کی شرارتوں سے میں بھی واقف نہیں، ان سے تو یوسف جیسا پاک باز انسان بھی محفوظ رہ سکتا ہے جس پر خدا کی خاص مہربانی رحمت ہے۔ ابو حیان نے بھی اس کو زلیخا کا معقولہ کرا دیا، لیکن لیالما اور لم اکن کی ضمیریں بجائے عزیز کے یوسف کی طرف راجع کی ہے، یعنی اپنی خطا کا صاف اقرار اس لیے کرتی ہوں کہ یوسف کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی غلط بات نہیں کہی، نہ اپنے جرم کو ان کی طرف منسوخ کیا۔ اللہ علم، یعنی میرا مسیر خاص رہے گا۔ کچھ پہلے سے متعقد ہو چکا تھا
बादशाह बातें सुनकर बिल्कुल गर्वेदा हो गया। हुक्म दे दिया कि आज से आप हमारे पास नहायत मुअज़्ज़ज़ व मुतबर होकर रहेंगे। हज़रत साहब रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अब अजीज़ का इलाका मौकूफ़ किया, अपनी सोबत में रखा, यानी दौलत की हिफाजत में पूरी करूँगा और उसकी आमदो खर्च के ज़राए हिसाब व किताब से खूब वाकिफ़ हूँ। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने खुद दरख्वास्त करके मालियात का काम, यानी फाइनेंस मिनिस्टर बनने का काम अपने सर लिया था, इस ज़रिया से आम खलाइक को पूरा नफ़ा पहुँचा सके। कितने अमानतदार की कहत के लिए पहले से जब जो सा नफ़ा था, आज क्या दुनिया अल्लाह हर मोमिन मुसलमान को ऐसे पूरा नफा पहुंचा सके, खुसूसन आने वाले खौफनाक कहते में नहायत कुछ इंतजामी से मखलूक की खबरगिरी हुकूमती माली हालत को मजबूत रख सके। इससे जाहिर होता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की दुनिया की अकल भी कामिल रखते हैं और ये कि हमदर्दी खलाइक से मालियात के किस्सों में पन्ना शान नबूवत या बुजुर्गी के खिलाफ नहीं समझते। नेज एक आदमी की अगर नेक नीति से ये समझे कि फला मनसब का मैं अहल हूँ और दूसरों से ये काम अच्छी तरह न बन पड़ेगा तो मुसलमान की गैर कल्बी या न परेशानी के घर से इसकी ख्वाहिश या दरख्वास्त कर सकता है। और अगर हस्ब ज़रूरत अपने बाद खसाल हसना औसाफ हमीदा का तज़किरा करना पड़े तो ये नाजायज मदद सराई में दाखिल है। अब्दुल रहमान बिन सुमरत की एक हदीस से मालूम होता है कि जो शख्स आज खुद इमारत तलब करे तो उसका बार उसी के कदों पर डाल दिया जाता है, यानी गैबी अनाथ मददगार नहीं होती। ये उस वक्त है जब तलब करना महज नफ्स परोरी और जहाँ पसंदी वगैरह अगराज के बिना पर हुआ। अल्लाह जहाँ चाहते उतरते और जहाँ जो चाहते तसल्लुत करते। गोया ये बयान रयान बिन वलीद बराए नाम बादशाह था, हकीकत में यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाही कर रहे थे, अजीज कहकर पुकारे जाते थे, जैसा कि आगे आएगा। बाज़ उलमा ने लिखा कि बादशाह आपके हाथ मुसलमान हो गया। नेज़ इसी ज़माने में अजीज मिस्र का इंतकाल हुआ तो इसकी औरत जुलेखा ने आपसे शादी कर ली। वल्लाह मुहद्दिसीन इस पर इत्मीनान नहीं करते। जो भलाई या नेकी का रास्ता अख्तियार करे खुदा उसको दुनिया में भी मीठा फल देता है। का सरबत हुकूमत या लज़्ज़त ऐसे है तैयबा अगनाए कल्बी हज़रत यूसुफ को ये सब चीज़ें अनायत फरमाई। रहा आखिरत का आज वो एक ईमानदार और परहेजगार के लिए दुनिया के आज से कहीं बेहतर है। हज़रत साहब रहमतुल्लाह लिखते हैं ये जवाब को उनके सवाल का कि औलाद इब्राहिम इस तरह शाम से आई मिस्र में और बयान हुआ कि भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को घर से दूर फेंका ता दलील हो अल्लाह ने इज्जत दिया मुल्क पर अख्तियार दिया। ऐसा ही हुआ हमारे हज़रत को मौज़ा कुरान में है जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुल्क मिस्र पर मुख्तार होने हुए ख्वाब के माफिक 7 बरस खूब आबादी की और मुल्क का अनाज भरते गए। फिर 7 बरस के कहत में एक भाव में आना बांध कर बिकवाया अपने मुल्क वालों को और परदेशियों को सबको बराबर, मगर परदेशी को एक ऊँट से ज़्यादा न देते थे। इसमें खल्क बची कहत से और खजाना बादशाह का भर गया। हर तरफ खबर थी कि मिस्र में अनाज सस्ता है। उनके भाई खरीदने के घर से आए, उनके तन वतों से हयात वज़ा में चंद तगय्युर न हुआ था। इधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बराबर अपने बाप भाइयों का तफक्कुर करते रहे होंगे और वहाँ पहुँचने पर उनका नाम निशान भी दरियाफ्त कर लिया होगा, जैसा कि सलातीन मायान से मुलाकात करने में उम्मन हुआ करता है। चुनांचे बाद तफासिर में है कि उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपना नाम नस्ल वगैरह बयान किया। हाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदाई के बाद चूँकि बहुत छोटे थे और भाइयों को पहले से इधर ख्याल भी न था कि बादशाहों के यहाँ आम आदमियों की ये जुरात हो सकती है कि उनका नाम नस्ब वगैरह दरियाफ्त करे, इसलिए वो यूसुफ को न पहचान सके। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों की खूब मुराद और मेहमानदारी की। एक एक ऊँट फी कस गल्ला दिया। ये खास मेहरबानी अखलाक देखकर कहते हैं उन्होंने दरख्वास्त की कि हमारे एक इल्लाती भाई बिन्यामीन को बूढ़े गमज़दा बाप ने तस्कीन खातिर के लिए अपने पास रोक लिया है, क्योंकि उसका दूसरा ऐनी भाई यूसुफ जो बाप को बेहद महबूब था मुद्दत हुई कहीं जंगल में हलाक हो चुका है। अगर बिन्यामीन के हिस्सा का गल्ला भी हमको मरहमत फरमाए तो बड़ी नवाजिश होगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस तरह गायब का हिस्सा देना खिलाफ कायदा है। तुम फिर आओ तो बिन्यामीन को साथ लाओ, तब उसका हिस्सा पा सकोगे। मेरे अखलाक और मेहमान नवाजी को तुम खुद मुशाहदा कर चुके हो। क्या इसके बाद तुम्हें अपने छोटे भाई के लाने में कुछ तरद्दुद हो सकता है? यानी न लाए तो समझा जाएगा कि तुम झूठ बोलकर धोखा देकर खिलाफ कायदा एक ऊँट ज्यादा लेना चाहते थे। इसकी सजा ये होगी कि आइंदा खुद तुम्हारी सभी सोख्त हो जाएगा, बल्कि मेरे पास मेरे कलमर्द में आने की भी इजाज़त न होगी। यानी गो बाप से उसका जुदा करना सख्त मुश्किल है। ताहम हमारी ये कोशिश होगी कि बाप को किसी तदबीर से राजी कर ले। उम्मीद है कि किसी न किसी तरह हम अपने मकसद में कामयाब होकर रहेंगे। यानी जो पूंजी देकर गल्ला खरीदा था हुक्म दिया कि वो भी खुफिया तौर पर असबाब में रख दे, ताकि घर पहुंचकर जब असबाब खोले देखे कि गल्ला के साथ कीमत भी वापस दे दी गई तो दोबारा इधर आने की तरगीब मजीद हो कि ऐसे करीम बादशाह कहाँ मिलते हैं। मुमकिन हो कीमत न मौजूद होने की बना पर दोबारा आने से मजबूर रहे, इसलिए कीमत वापस कर दी। बाद ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से कीमत लेना मरवत व करम के खिलाफ समझा। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह उसके मुतालिक कुछ तरद्दुद न कीजिए, अब हम चौकन्ने हो गए हैं, पूरी तरह हिफाजत करेंगे। यानी यही अल्फाज हाफिजुन तुमने यूसुफ को साथ ले जाते वक्त कहे थे, फिर तुम्हारे वादा पर क्या एतबार हो? हाँ, इस वक्त ज़रूर शदीद है जिसे अगमाज नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हारे साथ भेजना ग्रेज मालूम होता है। सो मैं इसको खुदा की हिफाजत में देता हूँ, वही अपनी मेहरबानी से उसकी हिफाजत करेगा, मुझको यूसुफ की जुदाई के बाद दूसरी मुसीबत से बचाएगा। यानी बिन्यामीन का हिस्सा, यानी ऐसी आसान भर्ती को छोड़ना नहीं चाहिए जिस तरह हो बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दीजिए। बाद ने साले का कैलू यसीर का इशारा पहले जो गल्ला लाए थे उसकी तरफ यसीर को बमाना कलील लिया है, यानी जो पहले लाए हैं वो हाजत के एतबार से थोड़ा कहत का ज़माना में कहाँ तक काम देगा। लिहाजा जरूरी है जिस तरह बन पड़े हम दोबारा जाएं और सबका हिस्सा लेकर आए। यानी अगर तकदीर लाई से कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए जिसमें तुम सबको घिर जाओ, निकलने की कोई सबील न रहे, तब तो मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ, अपने मकदूर और जिंदगी भर बिन्यामीन की हिफाजत में कोताही न करोगे।
यूँ पुख्ता अहद पैमान कस्में लेकर ज़्यादा ताकीद एहतमाम के तौर पर फरमाया अल्लाह अला मा नकुल वकील, यानी जो कुछ अहद पैमा हम इस वक्त कर रहे हैं वो सब खुदा के सपुर्द है। अगर किसी ने खयानत बहद अहदी की वही सजा देगा। यानी कि कौल करार तो अपने मकदूर के माफी पुख्ता कर रहे हैं, लेकिन इस बातों से जो मकसद असली है वो खुदा की हिफाजत निगरानी से पूरा हो सकता है। खुदा ना चाहे तो सारे असबाब तदाबीर रखी रह जाए, कुछ ना हो। हज़रत साहब रहमतुल्लाह लिखते हैं ज़ाहिरी असबाब भी पुख्ता कर लिया और भरोसा अल्लाह पर रखा। यही हुक्म है हर किसी। बिरादरान यूसुफ पहली मरतबा जो मिस्र गए थे आम मुसाफिरों की तरह बला इम्तियाज शहर में दाखिल हो गए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की खास तवज्जुहात व इल्ताफ़ को देखकर यकीन वहाँ के लोगों की नज़रें उनकी तरफ उठने लगी होंगी। अब दोबारा जाना खास शान एहतमाम से, बल्कि कहना चाहिए कि एक तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम की दावत पर था। बिन्यामीन जिनकी हिफाजत व मोहब्बत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के बहुत करते थे, भाइयों के हमरा थे। याकूब अलैहिस्सलाम को ख्याल गुजरा कि एक बाप के 11 वजिया खुश रूह बेटा का खास शान इज्तिमाई शहर में दाखिल होना, खुसूसन उस बर्ताव के बाद जो अजीज मिस्र यूसुफ की तरफ से लोग पहले मुशाहिदा कर चुके थे, ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ आम निगाहें ज़रूर उठेंगी। हक नज़र लग जाना एक हकीकत है। आजकल मसमर जज़म किया जाए बात तो अम्मा इसी कुव्वत निगाह के करिश्मे है। याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को नज़रबद, हसद वगैरह मकरूहात से बचाने के लिए ये ज़ाहिरी तदबीरें तलकीन फरमाए कि मुतफर्रिक होकर मामूली हैसियत से सर के मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल हो, ताकि खाही न खाही पब्लिक की नज़रें उनकी तरफ न उठे। साथ ही ये भी जाहिर कर दिया कि मैं कोई तदबीर करके कज़ा व कदर के फैसले को नहीं रोक सकता। तमाम कायनात में हुक्म सिर्फ खुदा का चलता है। हमारे सब इंतजामात हुक्म के मुकाबला में बेकार है। हाँ, तदबीर करना भी उसी ने समझाया और जायज़ रखा। आदमी को चाहिए कि बचाव की तदबीर करके मगर भरोसा खुदा पर रखे। गोया लड़कों को सुनाया कि मेरी तरह तुम भी तहे दिल से खुदा की हिफाजत पर भरोसा रखो, तदाबीर पर मगरूर न बनो। यानी मुख्तलिफ दरवाज़ों से अलहदा जाना। यानी जिस तरह कहा था दाखिल हुए तो अगरचा नज़र या टोक न लगी, लेकिन तकदीर तरफ से आई। बिन्यामीन को इल्ज़ाम सरका के सिलसिला में रोक लिया गया। तकदीर दफा नहीं होती, सो जिनको इल्म है उनको तकदीर का यकीन असबाब का बचाव दोनों हासिल हो सकते हैं, लेकिन बेइल्म से एक तो दूसरा न हो। यहाँ मतन असबाब का इनकार करके तकदीर का इनकार कर बैठता है। तकदीर पर यकीन रखने के लिए ये माने समझ लेता है कि असबाब को मुअत्तिल कर दिया जाए। अलबत्ता आरिफ और बाखबर लोग तकदीर व तदबीर को जमा करते और हर एक को इसके दर्जा में रखते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन के साथ मुमताज़ मामला किया और क़रीबत में आहिस्ता से आगाह कर दिया कि मैं तेरा हकीकी भाई यूसुफ हूँ, जो मज़ालिम मिल्लाती भाइयों ने हम पर किए कि मुझे बाप से जुदा करके कुएं में डाला, गुलाम बनाकर बेचा और हमारे बाप भाइयों वगैरह को फिर आपकी सदमा में मुब्तला किया। अब यहाँ आते हुए तुम्हारे साथ कोई सख्ती की इन बातों से गमगीन मत हो। वक्त आ गया कि हमारे सब गम गलत हो जाए और सख्तियों के बाद हक ताला राहत व इज्जत नसीब फरमाए। हज़रत साहब रहमतुल्लाह लिखते हैं इस भाई को जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आरज़ू से बुलाया और औरों को हसद हुआ, इस सफर में उसको बात पर झिड़कते आताने देते। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तसल्ली कर दी। यानी जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से उनका गल्ला दिलवा दिया और सामान सफर तैयार किया गया, तो एक चांदी का प्याला अपने भाई बिन्यामीन के असबाब में बला इतला रख दिया। जिस वक्त काफिला रवाना होने लगा, मुहाफिजीन को प्याला की तलाश हुई। आखिर उनका सुबह इसी काफिला पर गया। काफिला थोड़ी दूर निकला था कि मुहाफिजीन में से किसी ने आवाज़ दी कि ठहरो, तुम लोग यकीनन चोर मालूम होती हो। तंबीह, अगर ये लफ्ज़ यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से कहे गए तो ये मतलब होगा कि कोई माल चुराता है, तुम वो हो जिन्होंने बाप की चोरी से भाई को बेच डाला। यानी हमको खामखा चोर क्यों बनाते हो? अगर तुम्हारी कोई चीज़ गुम हुई है वो बतलाओ, हम अभी कहीं गए नहीं, हमारे असबाब में तलाश करो। मुहाफिज़िन ने कहा कि बादशाह के पानी का पीने का प्याला या गल्ला नापने का पैमाना गुम हो गया। अगर बदून हिल महजत के कोई शख्स हाजिर कर देगा तो वो गल्ला का एक ऊँट इनाम पाएगा। इसका जिम्मेदार हूँ मैं, इसका जिम्मेदार हूँ। यानी मिस्र में हमारा चाल चलन आमतौर पर मालूम है। क्या कोई बतला सकता है कि हमने यहाँ कभी कुछ शरारत की है? न हम शरारतों के लिए यहाँ आए, न चोरों के खानदान से हैं। मुहाफिज़िन ने कहा कि तुम फजूल हुज्जतें कर रहे हो। अगर माल सरों का तुम्हारे पास से बरामद हो गया तो क्या करोगे? ये शरीयत इब्राहिम में चोरी की सजा थी, यानी जिसके पास से चोरी निकले वो 1 साल तक गुलाम होकर रहे। और बिरादरानी यूसुफ ने अपने कानून शरीय के मुआफिक बेतामुल सजा का जिक्र कर दिया, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि हम चोर नहीं, न चोरी का माल हमारे पास है से बरामद हो सकता है। इस तरह अपने इकरार से खुद पकड़े गए। यानी इस गुफ्तगू के बाद मुहाफिजीन उनको अजीज मिस्र यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ले गया। सब माजरा को सुनाया। उन्होंने तफ्तीश का हुक्म दिया। पहले दूसरे भाइयों की खराबियाँ, जंबीले बेग वगैरह देखे गए। प्याला बरामद न हुआ। आखिर में बिन्यामीन के असबाब की तलाशी हुई, चुनांचा प्याला उसमें से निकल आया। यानी तदबीर की कि हमने यूसुफ के लिए, यानी भाइयों की जुबान से आप ही निकला कि जिसके पास माल निकले गुलाम बना लो, उस पर पकड़े गए। वरना हुकूमत मिस्र का कानून ये न था। अगर ऐसी तदबीर न की जाती कि वो खुद अपने इकरार में बन जाए तो मुल्की कानून के माफी कोई ज़रूरत बिन्यामीन को रोक लेने की न थी। यानी जिसे चाहे हिकमत व तदबीर सिखाए या अपनी तदबीर लतीफ़ से हुनरमंद सर बुलंद करे। देखो वही लोग जिन्होंने बाप की चोरी से यूसुफ को चंद दरहम में बेच डाला, आज यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने चोरों की हैसियत में खड़े। शायद इस तरह उनकी पिछली गलतियों का कफारा करना होगा। यानी दुनिया में एक आदमी से ज़्यादा दूसरा, दूसरे से ज़्यादा तीसरा जानने वाला है, मगर सबके जानने वालों के ऊपर एक जानने वाला है जिसे आलिम गैब व शहादत कहते हैं। तंबीह वाज़ा हो कि इस तमाम वाक़या में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से कोई लफ्ज़ खिलाफ आकर न निकला, न कोई हरकत खिलाफ शरह हुई। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने तौरिया किया। तौरिया का मतलब यह ऐसी बात करना जिससे देखने सुनने वाले के ज़हन में एक ज़ाहिरी करीबी मतलब आए, लेकिन मुतकल्लिम के मुराद दूसरी हो। जो ज़ाहिरी
मतलब से बैठा। अगर ये तोड़िया किसी नेक और महमूद मकसद के लिए किया जाए तो उसके जायज बल्कि महमूद होने में शुबा नहीं। और किसी मखजूम कभी गासे के लिए हो तो वो तोड़िया नहीं, धोखा पड़ेगा। यहाँ ताला को मंजूर था कि याकूब अलैहिस्सलाम की इत्तला इम्तिहान की तकमील कर दी जाए। यूसुफ के बाद बिन्यामीन में भी उनसे जुदा हो। इधर मुद्दत के बिछड़े हुए दो गैबी भाई आपस में मिलकर रहे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को इम्तिहान की घाटियों से निकालने के बाद अव्वल इल्लाती भाई, फिर आनी भाई, फिर वालिद बुजुर्गवार सब उम्मतें बतदरीज मिलाए। दूसरी तरफ बिरादरान यूसुफ से जो गलतियां हुई थी, कुछ ठोकरें खाकर वो भी अफू रहम के दरवाजे पर पहुंच जाए। आना मालूम क्या हिकमतें होंगी जिनकी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा तोड़िया करने की हिदायत हुई। उन्होंने प्याला अपने भाई के असबाब में रखा, फिर न किसी पर इसकी चोरी का इल्जाम लगाया, न कहा कि हम फला को चोरी की सजा में पकड़ते। सूरतें ऐसी पैदा होती गई चली गई जिनसे आखिरी में बिन्यामीन के लिए अपने भाई के पास इज्जत व राहत के साथ रहने की सभी निकल आई। मसलहत बाज ऐसे अल्फाज बेशक इस्तेमाल किए जिनके माने मुराद न थे। बाज या बात चीज़ों पर सकूत किया जिनकी निस्बत अगर कुछ बोलते तो रास पास होकर असल मकसद पास हो जाता। वल्लाही ये इशारा यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ था। अपनी पाकबाजी जताने के लिए महज नाहक कोशी आनाना से बिन्यामीन के जुर्म को पुख्ता कर दिया। इतनी मुद्दत के बाद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम मासूम बद झूठी तहमत लगाने से न शर्माए। मुफस्सिरीन ने इस मौका पर कई किस्से बयान किया जिनकी तरफ बिरादरानी यूसुफ ने चोरी के लफ्ज़ में इशारा किया था, इनकी नकल की हाजत नहीं। यानी ऐसा सख्त लफ्ज़ सुनकर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकाबू नहीं हुए, क्योंकि मसलहत खुदाबंदी अब सायरात को मुक्तज़ा न थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बात को दिल में रखा, जवाब देकर उनके एहतमाम की हकीकत न खोली। अपनी जी में कहा, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांट, मुझे चोर बना तो हालांकि तुमने बात ऐसी चोरी की कि भाई को बाप से चुराकर बेच डाला। बाकी मेरी चोरी का हाल अल्लाह को मालूम है। बाद में मुफस्सिरीन ने उनका मतलब ये लिया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको खिताब करके कहा कि तुम बड़े ही बदतरीन लोग हो। अभी ये कह रहे थे कि हम चोरों में के नहीं। जब एक भाई के असबाब में से माल बरामद हुआ तो इसके साथ दूसरे गैर हाजिर भाई को भी मुलविस करने लगे। गोया चोरी करना तुम्हारा खानदानी पेशा है। खुदा खूब जानता है कि तुम अपने बयान में कहाँ तक सच्चे हो, वही तुमको गलत बयानियों की सजा देगा। यानी बूढ़े बाप को बड़ा सदमा पहुंचा और हम सब इससे ज़्यादा इसको इसके भाई यूसुफ को चाहते थे। यूसुफ के बाद अब इससे अपनी दिल को तसल्ली देते हैं, आप अगर इसकी जगह हम में से एक को रख ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप हमेशा मखलूक पर बड़ा एहसानात करते हैं, हम पर खुसूसी एहसानात फरमा रहे हैं। उम्मीद है हमको अपने कर्म से मायूस न फरमाएं। यानी खुदा पनाह में रखे कि हम किसी को बेसबब दूसरों के बदले में पकड़ने लगे। हम तो सिर्फ उसी शख्स को रोकेंगे जिसके पास अपनी चीज़ मिली है। वो बिन्यामीन है जो आनी भाई हो, नेकी हैसियत से हमारे पास रहेगा। यहाँ भी फरमाया जो मुख्तसर था क्योंकि वाक़या के खिलाफ होता है। यानी मुजरिम के बदले में बेकसूर को पकड़कर तो तुम्हारे खैर और कानून के मुआफिक हम बहुत बेइंसाफ ठहरेंगे। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर मायूस हो गए तो मजमा से हटकर आपस में मशवरा करने लगे। अक्सरों की राय हुई कि वतन वापस जाना चाहिए। उनमें जो अमूमन अकल वगैरह के एतबार से बड़ा था उसने कहा कि बाप के सामने हम क्या मुँह लेकर जाएंगे, जो अहद हमसे लिया था उसका क्या जवाब देंगे। एक तकसीर तो पहले यूसुफ के मामला में कर चुके जिसका असर आज तक मौजूद है। अब बिन्यामीन को छोड़कर सबका चला जाना सख्त बेहमियती होगी। इससे वाज़ह रहे कि बंदा तो किसी हाल यहाँ से चलने वाला नहीं, इल्ला ये कि खुद वालिद बुजुर्गवार मुझको यहाँ से चले जाने का हुक्म दे, या इस दरमियान में कुदरत की तरफ से कोई फैसला हो जाए, मसलन तकदीर से मैं यहीं मर जाऊँ या किसी तदबीर से बिन्यामीन को छुड़ाऊँ। तब यह कहने वाला गालिबन वही भाई था जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामला में भी नाम मशवरा दिया था। यानी मुझे छोड़ दो और तुम सब जाकर बाप से अर्ज करो कि ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी कोई तवक्को न थी। हज़रत साहब रहमतुल्लाह लिखते हैं कि यानी तुमको कॉल दिया था, अपनी दानिश पर क्या खबर थी कि बिन्यामीन चोरी करके पकड़ा जाएगा, या हमने चोर को पकड़ कर रखना बताया। अपने दिन के माफी ये ना मालूम था कि भाई चोर है। यानी आप मुतबर आदमी भेजकर उस बस्ती वालों से तहकीक करने जहाँ ये वाक़या पेश आया। नेज़ दूसरे काफिला वालों से दरियाफ्त फरमाएं जो हमारे साथ रहे और वापस आए हैं। आपको साबित हो जाएगा कि हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। पहली बार की बेतबारी से इस मरतबा भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों का एतबार न किया, लेकिन नबी का कलाम झूठ नहीं, बेटों की बिना बनाई बात थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बेटे थे। कज़ाफ़ी मौज़ा गोया लकुम का खिताब जिन्स बना के तरफ हुआ। वल्लाह बाद मुफस्सिरीन ये मतलब लिया कि तुम यहाँ से हिफाजत के कैसे वादे करके इसरार के साथ ले गए, वहाँ पहुँचकर इतना भी न किया कि उसके असबाब में से प्याला बरामद होने से चोरी कैसे साबित हो गई। शायद किसी और ने छुपा दिया। मदाफत तो किया करते ये कहकर पहले उसके भाई ने ये भी चोरी की थी, उसके जुर्म को पुख्ता कर दिया। तुम्हारे दिल में खोट न होता तो ये तब अमल अख्तियार न करते। अब बातें बनाने के लिए आए हो, बहरहाल मैं तो इस पर भी साबित करूँगा, कोई हर शिकायत जुबान पर न लाऊंगा। खुदा की कुदरत रहमत से क्या बाइद है कि यूसुफ बिन्यामीन वो भाई जो बिन्यामीन की वजह से रह गया सबको मेरे पास जमा कर दे। वो सबके अहवाल से खबरदार है, एक के साथ अपनी हिकमत के माफिक मामला करता है। इससे अंदाजा हो सकता है कि हर किस्म की यास अंगेज अहवाल मरोड़ धरोड़ के बाद भी अंबिया के कलूब मायूस नहीं हो सकते। वो हमेशा खुदा की रहमत वास पर इत्मीनान करते अल्ताफ की उम्मीदवार रहते हैं। नया जख्म खाकर पुराना जख्म हरा हो गया। बेअख्तियार पुकार उठे यास की अला यूसुफ अफसोस यूसुफ, यानी बेरौनक या बेनूर हो गई। अला अख्तिलाफ हदीस में है, यानी अंबिया की जमात में हक ताला की तरफ से सख्त तरीन इम्तिहानों में मुब्तला की जाते। फिर इम्तिहान के अक़साम, हर नबी को हक ताला अपनी हिकमत उसकी इस्तादात की माफिक जिस किस्म के इम्तिहान में चाहे मुब्तला करता है। याकूब अलैहिस्सलाम के कल्ब में यूसुफ अलैहिस्सलाम की फ़ाकुल आदत मोहब्बत डाल दी। फिर ऐसे महबूब और होनहार बेटे को जो खानदान इब्राहिम का चश्म चिराग था ऐसे दर्दनाक तरीके से जुदा किया गया। गमज़दा जख्म कुर्रा याकूब अलैहिस्सलाम के जिगर को इस रूह फरसा सदमा ने खा लिया। वो किसी मखलूक के सामने हर शिकायत जुबान पर न लाते, न किसी से इंतकाम लेते, न गुस्सा निकालते, गम की बात मुंह से न निकलती। हाँ, जब अपने को बहुत घोटते थे, दिल का बुखार आंखों की राह से टपक पड़ता। 20 बरस तक चस गिरिया असीना बरिया के बावजूद अदाए फराज
वह हकूक़ के कोई खलल न पड़ने दिया। उनका दिल जितना यूसुफ अलैहिस्सलाम के फिराक में रोता था उतना ही खुदा के हुजूर में ज़्यादा गिड़गिड़ाता था। दर्द गम की शिद्दत अश्कबारी की कसरत जिस कदर उनकी बसारत को ज़ईक़ करती उसी कदर नूर बसीरत को बढ़ा रही थी। बेताब हुआ इस्तराब का कैसा ही तूफान उसका दिल पकड़ कर कलेजा महसूस कर रह जाती ज़ुबान से उफ़ ना निकालते। बिन्यामीन की जुदाई से जब पुराने ज़ख्म में नया चरका लगा तो इस वक्त बेअख्तियार यास वाला यूसुफ सिर्फ इतना लफ्ज़ ज़ुबान से बकौल हज़रत साहब रहमतुल्लाह ऐसा था इतनी मुद्दत दबा रखना पैगंबर के सिवा किसी का काम हो सकता है। मौज़ा कुरान में है यानी क्या तुम मुझको सब्र सिखाओगे। बेसब्र वो है जो मखलूक के आगे खालिक के भेजे हुए दर्द की शिकायत करे। मैं तो उसी से कहता हूँ जिसने दर्द दिया और ये भी जानता हूँ कि यूसुफ जिंदा है, जरूर मिलेगा, इसका ख्वाब पूरा होकर रहेगा। ये मुझ पर आजमाइश है, देखो किस हद तक पहुँचकर बस हो। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह कबूल फरमा, जो गलती सलती भी माफ़ करिएगा, आप लोग भी माफ़ करिए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल्नी वाज़िरन मिन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 13वां पारा सूरह यूसुफ़ी चल रही है। यानी हक़ तआला की मेहरबानी और फैज़ से नाउम्मीद होना काफिरों का सिवा जिन्हें इसकी रहमत इस्तिताअत कुदरत कामिला की सही मार्फत नहीं होती। एक मुसलमान का काम यह है कि अगर पहाड़ की चट्टानों समुद्र की मौजों के बराबर मायूस हालात पेश आए तब भी खुदा की रहमत का उम्मीदवार रहे और इम्कानी कोशिश में बस हिम्मत ही न दिखलावे। जाओ कोशिश करके यूसुफ का खोज लगाओ, उसके भाई बिन्यामीन के छुड़ाने का कोई जरिया तलाश करो। कुछ बाद नहीं कि हक़ तआला हम सबको फिर जमा कर दे। तीसरे भाई का जिक्र शायद इसलिए नहीं किया कि वो बाख्तियार खुद महज बिन्यामीन की वजह से रुका है। बिन्यामीन छूट जाए तो हुक्म पड़ा रहेगा। बाप के फरमाने पर मिस्र को रवाना हुए क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम का पता मालूम न था। ये ख्याल हुआ होगा कि जिसका पता मालूम है बिन्यामीन में पहले उसकी फिक्र करे। अकाद की वजह से गल्लत की जरूरत है। अजीज को इधर भी तवज्जो दिलाए। अगर देने लेने के मामलों में कुछ नर्म पाया तो बिन्यामीन के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। चुनांचा पहली बात उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से यही कही कि आया अजीज मिस्र आजकल कहते व नादारी की वजह से हम पर हमारे घर पर बड़ी सख्ती गुजर रही है। सब असबाब घर का एक बिक गया, कुछ निकम्मी हाफिज की पूंजी रह गई है, वो गल्ला खरीदने के लिए साथ लाए हैं। आपके मकारिम अखलाक का गुजस्ता मेहरबानियों से उम्मीद है कि हमारी नाकिस चीज़ों का ख्याल न फरमाएंगे। थोड़ी कीमत में गल्ला की मिकदार गुजस्ता की तरफ पूरी दिलवा देंगे। ये रियायत हकीकत में एक तरह की खैरात होगी जो आप हमको करेंगे, या इसके अलावा हमको बतौर खैरात ही कुछ दे दीजिए, खुदा आपका भला करेगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये हाल सुनकर रो पड़े। सख्त दिल का चश्मा दिल में जोश मारकर आंखों से उबल पड़ा। उस वक्त हक़ तआला के हुक्म से अपनी कहीं जाहिर किया कि मैं कौन हूँ और तुमने मेरे साथ जो मामला किया था उसके बाद मैं किस मर्तबा पर पहुंचा हूँ। अगली आयत में से अज़हार की तमीद है। तंबिया बाद में तकदीर के माने मतलब एहसान करने के लिए जैसे कसर सलात की हदीस में यानी दोनों में जुदाई डालिया, दोनों से बैर रखा। अल्लाह अकबर। सब्र मरवत अखलाक की हद हो गई कि तमाम उम्र भाइयों की शिकायत का एक हर जुबान पर न लाए। इतना सवाल भी इसीलिए क्या कि वो लोग अपने जहनों में 20 बरस पहले के हालात को एक मरतबा मुस्तहदर कर लें। तमाजी हाल के मुआवजना से खुदा ताला के उन्हें एहसानात की हकीकत रोशन हो जो यूसुफ पर उनके मसाइब व हवादिस के बाद हुए, जिनकी तरफ आगे कदम अल्लाह अलैना में इशारा। फिर सवाल का फिराया ऐसा नर्म अख्तियार है जिसमें उनके जुर्म से ज्यादा माजरत का पहलू नुमाया है। यानी जो हरकत इस वक्त तुमसे शादी हुई नासमझी बेवकूफ़ी से हो गई। तुम्हें क्या मालूम था कि यूसुफ का ख्वाब पूरा होकर आवा। हाँ, हलाल एक रोज बदल बनकर रहेगा। मुमकिन है इस सवाल से घबराए हो कि इतनी मुद्दत के बाद ये कौन घर का भेदी निकला है। फिर अजीज मिस्र यूसुफ के किस्सा से क्या मतलब। गैर मामूली मेहरबानी और बिन्यामीन के साथ खुसूसी बर्ताव पहले से देख ही रहे थे। इस सवाल ने दफातन उनका ज़हन इधर मुंतकिल कर दिया हो कि कहीं यूसुफ जिसे हमने मिस्र काफिला के भेज डाला था यही तो नहीं। जब इधर तवज्जो ही तो बगौर देखा होगा और मुमकिन है यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद भी अपने को इस दफा ज्यादा वाज़ह तौर पर पेश किया हो या तस्रीहन कर दिया कि मैं यूसुफ हूँ। वो सख्त मुताजिब हैरत ज़दा होकर बोलू थे इन कलाम था यूसुफ, सच बताओ क्या तुम यूसुफ हो। यानी जिससे मुझको जुदा किया था आज मेरे पास बैठा। जुदाई को मिलाप से जिल्लत को इज्जत से, तकलीफ को राहत से, तंगी को ऐसे बदल दिया। जो गुलाम बनाकर चंद दरहम अपने फरोख्त किया था आज खुदा ने उसे मुल्क मिस्र की हुकूमत बख्शी। हज़रत साहब रहमतुल्लाह लिखते हैं जिस पर तकलीफ पड़े और वो शुरू से बाहर वो शरह से बाहर न हुआ, घबराई नहीं तो आखिर बला से ज्यादा आता हूँ। यानी तुझको हर हैसियत से हम पर फजीलत थी। तू इसी लायक था। हमारी गलती और भूल थी कि तेरी कदर न पहचानी। आखिर तेरा ख्वाब सच्चा और हमारा हसद बेकार साबित हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों से इतना भी सुनना नहीं चाहते थे। फरमाए ये तज़किरा मत करो, आज मैं तुम्हें कोई इल्जाम नहीं देता, तुम्हारी सब गलतियां माफ कर चुका हूँ। जो लफ्ज़ मैंने कहा महज़ अल्लाह ताला का एहसान सब्र व तक़वा का नतीजा ज़ाहिर करने की नियत से कहा। आज के बाद तुम्हारी तकसीर का जिक्र भी न होगा। मैं दुआ करता हूँ कि तुमने जो खताएं खुदा ताला की हैं वो भी माफ़ कर दी। मेरी मेहरबानी भी इसी की मेहरबानी का एक पर तो है। यानी मैं बहालत मौजूदा साहब का सफ़र नहीं कर सकता। तुम जाओ वालदान अपने सब मुतल्लिकीन को यहाँ ले आओ। चूँकि वालिद बुजुर्गवार की निस्बत वही से या भाइयों की जुबानी मालूम होगा कि बिनाई नहीं रही या निगाह में फ़र्क आ गया, इसलिए अपना कमीज़ देकर फरमाया कि उनकी आंखों को लगा देना, बिनाई बहाल हो जाएगा। तो साथ रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हर मर्द की अल्लाह की दवा आंखें गई थी एक सख्ते फ्राक में उसके बदन के चीज़ मिलने से चंगी हुई। ये करामत थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की करामत न कही। तब भी आजकल वाक़यात मुशाहदात के बना पर ये बात मान ली गई है कि किसी सख्त सदमा या गैर मामूली खुशी के असर से बाज नाबीना दफतन बिना हो गए। खुदा की कुदरत यूसुफ मिस्र में मौजूद है। कभी न कहा कि यूसुफ की खुशबू आती है क्योंकि खुदा को इम्तिहान पूरा करना था। अब बुलाने की छड़ी तो उधर काफिला यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज लेकर मिस्र से निकला। इधर पेराहन यूसुफ की खुशबू याकूब अलैहिस्सलाम के मसा में जान को मुअत्तर करने लगी। एक ये क्या अपूर्व वाक़या अजीब कुदरत का। एक मरतबा याकूब अलैहिस्सलाम जैसे मशहूर व मारूफ पैगंबर
शाम में रहा। यूसुफ जैसी जलील का शख्सियत मिस्र में बादशाह हद करी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कई मतलब मिस्र आया, खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम मेहमान बने। इसके बावजूद खुदावंद कुद्दूस की हिकमत गमज़ा और मशय्यत कहरा का हाथ से बाप के बेटे 20 बरस तक इलाज रखे। आप खुद के आंसू रुलाकर इम्तिहान की तकमील कर रहे। यानी ये बात कहते हो झझकता हूँ क्योंकि तुम्हारी समझ में नहीं आती। कह दो कि बुढ़ा सठिया गया। यानी यूसुफ की मोहब्बत, इस जिंदा होने और दोबारा मिलने का यकीन तेरे दिल में जागा जी। वही पुराने ख्यालात हैं जो यूसुफ की खुशबू बनकर दिमाग में आते हैं। यानी बिना ही वापिस आ गए, दोबारा हस्ब साबिक नजर आने लगा। यानी मैंने कहा ना था कि यूसुफ की खुशबू आ रही, आखिर सच हुआ। या बेटों को कहा कि यूसुफ को तलाश करो, अल्लाह की रहमत से क्या बाइद है, हम सबको फिर इकट्ठा करते, देख लो वही सूरत हुई। यानी तवज्जो और दुआ करके खुदा से हमारी गुनाह माफ़ कराइए, हमसे बड़ी भारी खताएं हुई हैं। मतलब ये था कि पहले आप माफ़ कर दें, फिर साफ दिल होकर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी दिलवाएं। यानी 11 भाइयों ने बाप से और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, क्योंकि खुद न बख्शे वो खुदा से क्या बख्शवाए। यानी कबूल की घड़ी आने दो, उस वक्त अपने मेहरबान खुदा के आगे तुम्हारे लिए हाथ उठाऊंगा। कहते हैं जुमा की सब या तहज्जुद के वक्त का इंतजार था, शहर से बाहर इस्तकबाल को निकले, माँ बाप को अपने करीब जगह दी। इसमें मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है। बाज़ का कौल है कि हज़रत यूसुफ की वालिदा पेशतर वफ़ात पा चुकी थी, जैसा कि साबिक फ़वाइद में गुजर चुका। यहाँ खाला का जिक्र है। बात कहते हैं कि वालदा हयात थी और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र तशरीफ लाई थी। सबको फरमाया शहर में चलो, कहत वगैरह का आप कुछ अंदेशा मत करो, इंशाअल्लाह बिल्कुल दिलजमी और राहत इत्मीनान से रहोगे। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्फाज शहर में पहुंचकर गोया उदखुल मिस्र के माने हो, मिस्र में क़याम करो बेखटके। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से वालिदैन की ताज़ीम की तख्त पर बैठाया, लेकिन खुदा को यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो ताज़ीम करानी थी उसे यूसुफ कब रोक सकते थे। उस वक्त के दस्तूर के माफिक माँ बाप और सब भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के आगे सजदा में गिर पड़े। ये सजदा ताज़ीमी था जो बकौल हाफिज़ अमादुद्दीन इब्न कसीर आदम के ज़माना मसीह अलैहिस्सलाम के ऐद तक जायज़ रहा। अलबत्ता शरीयत की मोहम्मदियन में ममनू हराम करार दिया, जैसा कि हदीस कसीरा इस पर शाहिद है। बल्कि हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह ने से हुर्मत का इशारा निकाला। बाद में मुफस्सिरीन ने इस जगह सजदा के माने मुतबार मुराद नहीं लिए, महज झुक जाने के माने लिए। बात कहते हैं कि सजदा यूसुफ को ना था, बल्कि यूसुफ की इज्जत वाजिबत देखकर सबने खुदा के सामने सजदा अदा किया। इस तकदीर पर इसमें लाम सब यह होगा, यानी यूसुफ की उरूज व इक़्तिदार के सबब से खुदा के आगे सजदा में गिर पड़े। तंबिया ताज़ीम इबादत दो अलग अलग चीज़ें हैं। गैर अल्लाह की ताज़ीम के लिए ममनू है, अलबत्ता गैर अल्लाह की इबादत शिर्क जली है, जिसकी इजाज़त एक लम्हा के लिए भी नहीं की जा सकती। सजूद इबादत यानी गैर अल्लाह को किसी दर्जा में नफ़ा ज़रर का मुस्तकिल मालिक समझकर सजदा करना शिर्क जलिया, जिसकी इजाज़त कभी किसी मिल्लत समामी में नहीं आई। हाँ, सजूद ताज़ीम यानी अक़ीदा मज़कूरा बाला से खाली होकर महज ताज़ीम और तकरीम के तौर पर सजूद होना शराए साहब में जायज़ था। शरीयत मोहम्मदिया आला साहिबत सलात व तस्लीम ने इसकी भी जरकात दी। हज़रत साहब वलीउल्लाह रहमतुल्लाह बारगाह में अक़साम शिर्क पर जो तहक़ीक़ बहस की है, इसे देखना चाहिए। यानी मेरा इसमें कुछ दखल नहीं। ख्वाब की ताबीर पूरी होनी थी, वो खुदा ने पूरी कर दी। खुदा ताला के एहसानात का जिक्र फरमाइए और उसकी तदबीर लतीफ़ की तरफ तवज्जो दिलाई कि किस तरह मुझको कैसे निकालकर मुल्क का हाकिम मुख्तार बना दिया। उस झगड़े के बाद जो शैतान ने हम भाइयों में डाल दिया था, जबकि कोई उम्मीद दोबारा मिलने की न रही, कैसे असबाब हमारे मिलाप के फराहम कर दी। इस मौका पर अपने मसाइब व तकलीफ का कुछ जिक्र न किया, न कोई हर्फ शिकायत जुबान पर लाए, बल्कि भाइयों के वाक़े की तरफ भी ऐसे उन्वान से इशारा किया कि किसी फरीक को ज़्यादती व तक़सीर ज़ाहिर न होने पाए। मुबादा भाई सुनकर महबूब हो, अल्लाह अकबर। ये अखलाक पैगम्बर के सिवा किस में होते हैं। इसी सूरत के पहले रुकू में तफसीर गुजर चुकी। या तो लिका अल्लाह के शौक में फिलहाल मौत की तमन्ना की, या ये मतलब है जब कभी मौत आए इस्लाम यानी कामिल तस्लीम रज़ा पर आए। तब यह हदीस में आया कि कोई सा किसी मुसीबत तकलीफ से घबराकर मौत की तमन्ना न करे। इससे मफहूम होता है कि जब लिका अल्लाह या किसी और गैर साला की वजह से मौत की तमन्ना कर सकता है, जैसे साहिरीन फिरौन ने दुआ की थी या हज़रत मरियम ने कहा था। मसनद अहमद में हदीस है, हज़रत अली ने हुजूम फतन के बाद दुआ की थी। इमाम बुखारी को जब अमीर खुसरान के साथ झगड़ा पेश आया तो ये दुआ करनी पड़ी थी, अल्लाह मतवफ़नी इलैक। हदीस में है कि खुरूज दज्जाल के वक्त एक शख्स किसी कब्र पर गुजरेगा और फतन ज़लज़ाल को देखकर कहेगा, या अय्युन काश के मैं तेरी जगह होता, यानी कब्र को देखकर। ये लफ्ज़ है जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौज़ूल मौत में फरमाते थे, अल्लाह फिर रफ़ीक़ आला। हज़रत साहब रहमतुल्लाह लिखते हैं कि इन कामिल पाया, दौलत कामिल पाई, अफसर को अपने बाप दादा के मरातब का गोया अलहिक़नी बिस्सालिहीन से गर्ज़ ये हुई कि मेरा मर्तबा इसहाक़ इब्राहीम के मरातिब से मिला दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी तक मुल्की इंतज़ामात में रहे, उनकी वफ़ात के बाद अपने इख्तियार से छोड़ दिया। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई थी कि मेरी लाश शाम ले जाकर दफन करना, चुनांचे जनाजा वहीं ले गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि एक ज़माना आएगा जब बनी इसराइल मिस्र से निकलेंगे, इस वक्त मेरी लाश भी अपने हमरा ले जाए। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब नबी बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले, हज़रत यूसुफ का ताबूत भी साथ ले गए। वल्लाह यानी बरादरान यूसुफ जब उनको बाप से जुदा करने और कुएं में डालने के मशवरे तदबीरें कर रहे थे, आप उनके पास नहीं खड़े थे। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये किस्सा सुनाया गया वही के जरिए, तब अल्लाह ताला खड़े थे, उनकी बातें सुनते, हालात का मुआयना करते। फिर ऐसे सही वाक़यात बखबर वही लाई कि आपको किसने बताई, आप रस्मी तौर पर पढ़े लिखे नहीं, किसी ज़ाहिरी मुअल्लिम से इस्तिफ़ादा की नौबत नहीं आई। फिर ये हक़ाइक़ जिनकी इस कदर तफसील बाइबल में भी नहीं, आपको खुदा के सिवा किसने मालूम कराई। यानी बावजूद कि आपकी सदाकत पर ऐसी वाज़ह दलाइल मौजूद है, फिर भी अक्सर लोग वो हैं जो किसी तरह ईमान लाने वाले नहीं, यानी
नहीं मानते, न माने, आपका क्या नुकसान? कुछ तबलीग की तनख्वाह तो आप उनसे मांगते न थे कि वो बंद कर लेंगे नसीहत, फरमाइश थी, सो होगा, ये हो रही है। यानी जिस तरह आयाते तंजीलिया सुनकर आप पर ईमान नहीं लाते, ऐसे ही आयाते तकवीयां देकर खुदा की तौहीद का सबक हासिल नहीं करती। असल है कि उनका मन सुनना देखना मत सरसरिया अल्लाह में गौर फिक्र करते तो कुछ फायदा पहुंचता, जब ध्यान नहीं तो ईमान कहाँ से? यानी जुबान से सब कहते हैं कि खालिक मालिक अल्लाह ताला है, मगर इसके बावजूद कोई बुतों को खुदा का हिस्सेदार बना रहा है। चुनांचे मुशरिकीन अरब तलबिया में ये लफ्ज़ कहते थे, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक ला शरीका लक ला शरीका हुवा लक तमलिकु व मा मलक। कोई उसके लिए बेटे बेटियां से तजवीज़ करता है, कोई से रूह व मादा का मोहताज बनाता है। किसी ने अहबार रहबान को खुदाई के अख्तियार दे दिए थे। बहुत से ताजिया परस्ती, कबर परस्ती, पीर परस्ती की खस खास से तौहीद के साफ चश्मा को मकबूल कर रही है। रिया हवा परस्ती से तो कितने ही मुहद्दिन हैं जो पाक होंगे। गाज़ी ईमान का जुबानी दावा करके बहुत कम है जो अकीदा या अमल के दर्जा में शिर्क जलिया खफी का इत्क़ाद नहीं करते। यानी ऐसे बेफिक्र बेखौफ क्यों हो रही हो? क्या उन्होंने अज़ाब इलाही या क़यामत के हौलनाक हवादिस से महफूज रहने का कुछ इंतजाम कर लिया? यानी मेरा रास्ता यही मुखालिस तौहीद का रास्ता है। मैं तमाम दुनिया को दावत देता हूँ कि सब ख़यालात व अल्हाम को छोड़कर ये खुदा की तरफ आएँ, उसकी तौहीद, उसकी सफ़ात, कमालात, उसके अहकाम वगैरह की सही मार्फत, सही रास्ता से हासिल करें। मैं और मेरे साथी सीधे रास्ते पर हुज्जत, बुरहान, बसीरत व दान की रोशनी में चल रही है। खुदा ने मुझको एक नूर दिया जिससे सब हमराहियों के दिमाग रोशन हो गए। यहाँ किसी की अंधी तकलीफ नहीं, खालिस तौहीद का रहिया दहर कदम पर अपने वतन में मार्फत, बसीरत, खास रोशनी, आबूदियत महज़ की खास लज्जत महसूस करके बेसाख्ता पुकार उठता, सुभान अल्लाह व मा अना मिनल मुशरिकीन। यानी पहले भी हमने आसमान के फरिश्तों को नबी बनाकर नहीं भेजा। अंबिया साबिकीन इन्हीं इंसानी बस्तियों के रहने वाले मरते। फिर देख लो उनके झुठलाने वालों की दुनिया में क्या हश्र। हालांकि दुनिया में काफिरों को भी बसा औकात ऐस नसीब हो जाता है। आखिरत की बेहतरी तो खालिस उन्हीं के लिए है जो सिर्फ कुफ्र से परहेज करते हैं, जो तंबिया कुफार मक्का को अगले अहवाल से इबरत हासिल करें। तंबिया इस आयत से निकलता है कि कोई औरत नबी नहीं बनाई गई। हज़रत मरियम को भी कुरान ने सिद्दीक़ा का मर्तबा दिया। नेज़ आयत से ज़ाहिर होता है कि अहले बवा दी जंगल गवारों में से कोई नबी मबूस नहीं हुआ। यानी ताख़ीर आज़ाब से धोखा मत खाओ। पहली कौमों को भी लंबी मोहलतें दी गई। अज़ाब आने में इतनी देर हुई कि मुनकरीन बिल्कुल बेफिक्र बेश शरारतें करने लगे। हालांकि देखकर पैगम्बरों को उनके ईमान लाने की कोई उम्मीद न रही। इधर खुदा की तरफ से उनको ढील इस कदर दी गई कि मुद्दत दराज तक अज़ाब के कुछ आसार नजर न आते थे। पर दोनों तरफ से हालात व आसार पैगम्बरों के लिए यास-अंगेज़ थे। ये मंजर देखकर कुफार ने यकीन तौर पर ख्याल कर लिया कि अंबिया से जो वादे उनकी नुसरत हमारी हलाकत के किए गए थे सब झूठी बातें हैं। अज़ाब वगैरह का धोखा सिर्फ डालने के वास्ते था, कुछ बात नहीं कि ऐसी मायूस कुन इस तरह अंगेज़ हालत में अंबिया के कुलूब में भी ख्यालात आने लगे। के बाद अज़ाब को जिस रंग में हमने समझा था वो कभी सही न था। यास वास खतरात के दर्जा में बेअख्तियार वहम गुजरने लगे हों कि हमारी नुसरत और मुनकरीन की हलाकत के जो वादे किए गए थे क्या वो पूरे न किए जाएंगे। जैसे दूसरी जगह फरमाया, जब मुजरिमीन की बेखौफी और अंबिया की तस्वीर से इस हद तक पहुंच गए, इस वक्त नागहान आसमानी मदद आई। फिर जिसको खुदा ने चाहा यानी फरमाबरदार मोमिनीन को महफूज मंसूर रखा, मुजरिमों की जड़ काट दी। अल्लाह ताला की गैर महदूद रहमत व मेहरबानी से मायूस होकर होना कुफ्र है, लेकिन ज़ाहिरी हालात व असबाब के एतबार से नाउमीदी कुफ्र है। यानी यूँ कह सकते हैं कि फलां चीज़ की तरफ से जहाँ तक असबाब ज़ाहिरी का ताल्लुक है मायूसी है, लेकिन हक़ ताला की रहमत का हमला से मायूसी नहीं ने यही मायूसी मुराद है जो ज़ाहिरी हालात व आसार के एतबार से हो, वरना पैगम्बर खुदा की रहमत से कम मायूस हो सकते हैं। तंबिया कुफ्र का वसवसा कुफ्र नहीं, ना किसी दर्जा में ईमान या असमत की मनाफी है। हदीस में आया कि सहाबा रज़ियल्लाहु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम अपने दिलों में ऐसी चीज़ें बेअख्तियार पाते हैं जिनकी ज़ुबान पर लाने से हम बेहतर समझते हैं कि जलकर कोयला हो जाए। आपने फरमाया ऐसा पाते हो? अर्ज़ किया हाँ, ज़ालिका असलिया ईमान, ये तो खुला हुआ ईमान है। यानी ये कोई अफसाना या नाविल नहीं, तारीख़ी हक़ायक़ है जिनसे अक्लमंदों को सबक लेना चाहिए। यानी कुरान करीम जिसमें ये कसस बयान हुए कोई झूठी बनाई हुई बात नहीं, बल्कि तमाम पहली सच्चाइयों को तस्दीक करने वाला और हर ज़रूरी चीज़ को खुलकर बयान करने वाला, क्योंकि ईमानदार इससे नफ़ा उठाते हैं। इस लिहाज से इनके हक़ में खासतौर पर ज़रिया हिदायत रहमत है। यहाँ से आमीन सुम्मा सूरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला फज़ल अल्लाह ताला सूरह यूसुफ यहाँ तक ख़त्म हो गई। अल्लाह कबूल फरमाए, जो गलती सलती हुई अल्लाह माफ़ करे। आप लोग भी माफ़ करिएगा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।